with Dr. Chandrasekhar Patel. Uh, Welcome you all to the second day. The first day of the workshop of the MDP was we saw Dr. Vaibhav talking about different AI tools which made your life easier in terms of the work we do day in and day out. The second session was on stress management techniques by Dr. Naveen Pandeyji, who is a Yoga Ratna uh, awardee and Yogacharya. So where he discussed about various things, including the concept of health, the causes of stress, the basics about stress, and then also about uh, breathing techniques. Today is another important and wonderful session uh, by Dr. Devarshi Pallavi Bhatt, who is a professor at Manipal University, Jaipur, and she is a Srimad Bhagavad Gita scholar. The topic of the session would be spiritual intelligence, the missing link in research. Friends, spiritual intelligence, in my view, is much beyond religious beliefs, which focuses more on deeper understanding of life, its meaning, inner peace, and alignment with the higher purpose or values, we may call it. It's more about being self aware, finding a purpose and meaning in what we do in life, um, inculcating values like compassion, empathy, and loving others in a non judgmental way. Um, to know more about, because Devarshi ma'am is a expert. So first of all, I would introduce her and then hand over to her. So Dr. Devarshi Pallavi Bhatt is a distinguished academician and scholar with over 18 years of teaching and research experience. She is currently a professor in the Department of Computer Applications at Manipal University, Jaipur, and has previously worked with reputed institutions like Banasthali Vidyapeeth and Pune University. Her academic achievements include being a MTech gold medalist, a certified ethical hacker, a senior member of IEEE, and she has published over 50 research papers in reputed journals and conferences, and even guiding almost more than 7 PhD scholars. She has guided them and in the areas of IoT network security and augmented reality. A devoted Srimad Bhagavad Gita scholar and trainer, so Dr. Bhatt attributes her life transformation to the teachings of Srimad Bhagavad Gita, introduced to her by her mother. Over the last 5 years, she has actively dedicated herself to teaching and practicing the principles of Srimad Bhagavad Gita. She seamlessly integrates its timeless wisdom into her professional and personal life, inspiring students and professionals and peers alike. I personally, knowing her since long, we have so many insightful discussions, and every time I'm awed by the knowledge and uh, by the kind of learning she has. So, without much ado, I would hand it over to her. Uh, Devarshi ma'am, please. I would Thank you also so much, Dr. Yeah, please. I would also request the audience to applaud. Digitally, you may applaud, and we in that way we would welcome our guest speaker for today. And I am sure this would be very very helpful, not just in your research area, research field, but as a person, it will make us a better individual. Over to you, ma'am. Thank you so much, Dr. Amit, for such a nice introduction of mine. Hello, learners, and welcome to this session. And this topic is chosen very good by in the leadership of Dr. Shilpa Sharma, who is the head of the department, and Dr. Amit and Dr. Chandrasekhar. I extend my gratitude for organizing this kind of event because technically we always have various level of interactions and
we organize many FDPs and we organize many workshops and all. But this front is very, very important because after all, we all are human being and we are not machines. So we have to look forward for that aspect of our life also, that the work should be balanced with the life. So this is a very apt topic which has been chosen. So I'll share my screen and we'll talk about the spiritual intelligence. I request all the learners, all the listeners to please interact. Ask quite a few questions so that it will be interactive. So it will be more interesting if you interact, right? So I'm just sharing my screen before beginning this. Is my screen visible? Can anyone? Yes, it's visible. It is visible. Yes, yes, yes. Yes, it is. Yes. Okay, great. So, learners, today we are going to discuss about spiritual intelligence, the missing link in research. There are PhD scholars are sitting over here, the graduates also, BCA, BBA. I'm seeing, I mean, various heterogeneous kind of audience over here. So, because spiritual intelligence is applicable for all of us, and research is also applicable for all of us, right? So, we'll focus on the PhD scholars, and then we'll talk about various other aspects also, which we face in day-to-day life, because academics is nothing without the research, right? Whenever you are doing academics, you are learning certain subjects. Applicability of those courses comes from the applicability comes from the research. If you are doing something new about those and you are giving it to the society, so that is what is required when we talk about it, right? So now we'll move forward about for this spiritual intelligence. So what do you understand by spirituality? So let me ask the participants if you have any idea about the spirituality, and you can raise your hand. My voice breaking? Is my voice breaking? Yeah, it's breaking at times, but we are able to make out what you are saying. Maybe we Okay, so can let consider me switching over to LAN if possible. land. I'm just doing it. I'm just doing it. Yeah. In the meanwhile, the participants can pour in their understanding about what spirituality is. I would add my understanding. I think while we talk of religion, we are looking outside. And when we talk about spirituality, we are looking at the journey inside, within us. Yeah, Madhupriya is saying knowing the soul, of course, yeah, which is um, You not can in speak necessity. also. You Yeah, all can speak also. You can raise your hand, you can speak. yeah, the Is my mic voice access. clear now? Yes, it's much better, and we have the microphone access to all the participants, so you may make use of it. So Madhupriya says knowing the soul. Yeah. Okay. Uh, Okay, good. It is, yes, near to the question. So let us start with the dilemma. First of all, what is the dilemma of a PhD scholar or of a student, first of all, right? So let us move ahead and then discuss it one by one. So PhD scholar's dilemma, first of all, is research versus results. Whenever we choose a topic, what we do is we are focused on result. What are we going to get it? So are we doing the right research or not, or are we getting the right results which we have? Because the objective is very important, right? Because whatever you start with an objective, because you have some target to achieve. For example, you are a BCA student. So you have taken the admission in BCA, you are learning certain courses, and then you in the first semester you want to just pass the first semester, then the second semester ultimate goal is BCA graduation, right? So we have to have focused on the objective first of all. So research versus results means the dilemma is, am I doing the meaningful research or just trying to get the results for publications, right?
sometimes we are focused, PhD scholars must be, agree with me that we are focused on publications. But are we doing the right research is the question, is the key question whenever we start the research, right? So scholars often struggle between the deep exploration and there is a pressure to publish the work, right? So this is one of the dilemma. Second dilemma is perfection versus progress, because we have deadlines to complete the task, right? And we have certain aspirations also, that this is what I should achieve. My name should be there. In the good number of publications. So should I refine my work more, or I should move ahead of completing it in time? So these are two things which are we are focused on: perfection and progress. So is this perfect, or it is progressing in time? So many get struck trying to be perfect and each part of their work, and sometimes they delay the overall progress of that, right? And the third one is freedom versus guidance. Because whenever we are going to do the research, so what we do is we are focused on the guidance, that my guide is telling me to do this, and sometimes it is lacking the freedom, because should I rely on my supervisor or work independently? So it should be balanced between both. So sometimes this is a dilemma of the PhD. Too much independence may lead to the isolation, because nobody is then guiding me, and too much dependence can stifle the innovation. We want to do something new, we want to innovate something new, but we are not able to apply that, right? So this is a balance between both of them. And then passion versus pressure. So I love my subjects, because you choose your subject, right? You choose your subject, you choose your stream. Ki papa and mummy, I want to do this after 12th, or I want to pursue my PhD in this area. So all the research scholars and all the students choose their own interest areas, right? That means there is certain area or certain course or certain subject they're loving, but the stress is overwhelming because of the pressure of the market. Maybe sometimes few days back, me and Dr. Amit was sitting, and one student said that I have chosen this subject because my parents forced me to do so. So before that, we were scolding him that you have not progressed on this area. But then we empathize, because we got to know that he is not loving what he is doing, right? So this is what is also because the entire peer pressure, the market pressure, the environment pressure sometimes lead to something else which is not passionable to us. So this is also one of the dilemma of, some of the other time we all face it, including me. I have also faced it, and many of you must have faced it at point of time. So this is what is that, and then academia versus industry. So academia sometimes says something else, and industry sometimes says something else. And sometimes we want to pursue something, we want to pursue MBA, we want to pursue PhD, we want to pursue MCA, but then we struck, and we have an offer in our hand to join something, join an organization, and we have a package of some a decent package. So what should we do? Should we continue doing our higher studies, or should we go for the industry? So this is also one of the dilemma. And then work life balance, जिस पर हमारा ये पूरा सेशन ही बेस्ड है. So work life balance सबसे बड़ा dilemma है. Or how do I maintain my personal relationships, mental health, and pursuing my academics and pursuing my PhD? So this is a big challenge. This is a big challenge. So the intense focus on research often comes at the cost of your social life and well-being sometimes. And you just put your health on toll. So, and your personal relationships on toll, because you want to achieve something big, right? So then you are not fulfilling in your life, and then you end up in depression, or you end up in something, a dissatisfaction, right? So this is what is a dilemma. And then imposter syndrome.
So what is that? Am I really cut out for this? Others seem smarter to me and I act smarter in front of others, but I'm not actually. So inside I'm going in a lower side, and outside I'm showing myself as a I'm fitting into with the other with the crowd. So this is what is also a challenge. Many scholars experience self-doubt and they are feeling inadequate despite of evident progress. They are doing progress, but they are not competent enough with the environment. So these are all dilemmas which are very important when we are talking about the spiritual intelligence. It sorts out everything. It sorts out everything because it is a competition with your own self, not with others, right? And when we are comparing with others, no, then only we lead to something else. Dr. Amit wants to say something, please. I think, ma'am, it would be a good time to ask the scholars also, because we have discussed about really good dilemmas. Can we? I would ask the scholars. I mean, what other dilemmas do you have? Do you actually? Because I resonate with what Dr. Pallavi ma'am is saying, right? But are there any other dilemmas which you are facing? Or if you could share. Yes, I'm please, you're most welcome. Please share your dilemma so that it will be more interesting. Otherwise, it will be very isolated and monotonous. मतलब what क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती है? आई मीन आप रिसर्च की जर्नी में 4 साल 5 साल देते हैं. वी अग्री, यू नो, जो मैम ने कहा, परफेक्शन वर्सेस प्रोग्रेस, academia versus industry, work life balance, right? Because I feel my own scholars who are working with me, under my supervision, they have their own dilemmas. We can have a sense of what they want to say. Would you like to add something? Anybody can raise a hand or even type. Let's make it, useful for you. It should not be like another session where we are just talking about, and you're listening. And Let us make it simpler. Why you have chosen PhD? yeah. So this is a simple question. Simple question anyone can answer. Or why you have chosen your MBA or MCA or BBA, for that matter, if the graduates and postgraduates wants to answer. And PhD is my main focus of this talk. So I would request all the PhD scholars to participate. Are they really listening to me or not? Yeah, that seems to be a concern. See, you have a chat box. You can make use of it. You can unmute yourself, right? Because without participation, even the speaker is discouraged, right? You must, I think you realize it. Because the entire session is for your benefit. Jyoti Mishra, you're there? Okay. Because I am not able to see all the participants. I am only seeing a few of them only, not all. Okay. We have 46 participants right now. Mhm. I think we got one chat. Okay, Madhupriya. No, so it's Madhupriya. Okay. To be honest, to get more stability in academic area. That is why she has chosen. Aarti Goswami says that it was a goal and dream. Okay. It was a goal and dream. Okay. Kushan says that to gain business knowledge and leadership skills for future career growth. Okay. Do you want to gain business knowledge and leadership skills through PhD? No, Okay, he's from BB. Okay. It was a dream. So, okay. Okay, that's good. That's good. That's really good answers. But nothing is related to the satisfaction, inner satisfaction, and nothing is related to the spiritual sense. They all want to make career, and but they're not focused on. Are you satisfied doing your research? Are you actually achieving what your objective was? I think they want to say that they will get satisfaction on accomplishing their dreams. Since it was a Okay. dream, accomplishing the dreams will make them That's happy. great. That's really great. That's really great. Okay, so let us move ahead to the next slide, and that will be more interesting. I'll ask you a few questions.
So if I had my life to live over again, I would be a plumber. So Albert Einstein, everyone knows him. He's saying so. So why he is saying so? So he was a great scientist and a awardee, and he's very famous. If we see his photo and we recognize him, the world recognize him, right? But still, he's saying, I would not want to be a scientist, or I just want to be a plumber. Why? Anyone? Okay, I'll answer that. Yes, Maybe Amit. Amit maybe sir? he did good things, great things in the view of the world, but maybe his inner view was not resonating with what he did. Exactly, exactly. Because we are in the middle of the war, and few days back, I mean, in 2 days back only, we have just got the ceasefire, so we were satisfied. But still, we were threatening because we are threatened, and the world was threatened because two nuclear power were in the war, right? And this is what is a very challenging thing to be in the war with the nuclear. So who has evolved that? Albert Einstein was a very part of that when he has evolved a nuclear bomb, right? So nuclear experiment was his part and parcel of job, and he has done it. But later on, he realized that I have done something which is a very Monica Sharma is unmute. Yeah, okay. Okay, So I'll take he was not satisfied with the experiment he has done. Why? Because it was so destructive. It was not good for mankind, right? Because although it has a positive aspect also, but the negative was more this thing. So Albert Einstein, I mean, this big scientist is also not satisfied with his result because the spiritual quotient was missing. The spiritual intelligence was missing when he was evolving that. And later on, he realized he was a scholar of Bhagavad Gita itself, and he was very spiritually sound later on when he realized it. But the initial stage when he was driving force was to get success and get fame and name. Then he evolved that. But later on, he realized that particular thing. So let us discuss what is spiritual intelligence, which is what the Albert Einstein said that. So, what is the spiritual intelligence? Spiritual intelligence, as it is written over here, is a higher dimension of intelligence that activates the qualities and capabilities of the authentic self in the form of wisdom, compassion, integrity, joy, creativity, peace, resulting in the sense of deeper meaning and purpose. So, this entire statement is talking about many deep terms which are nothing to related with money, or that nothing to related with only materialistic things, right? It is I mean, joy, wisdom, compassion, integrity, peace, so and sense of deeper meaning and purpose. So this is what is spiritual intelligence, right? So spiritual intelligence, when we all talk about uh, the the intelligence, right? And then intelligent quotient, IQ, which we say, and it was very famous, right? The term was very famous when we were not aware of emotional quotient. So people became intelligent, लेकिन उनका क्या missing है? They are going into depression. उनको they are doing the suicidal attempts, और दे आर वेरी वो एरोगेंट हो गए हैं, उसकी वजह से वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये बहुत सारी चीजें हुई. इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही सफिशिएंट है, राइट? इंटेलिजेंट होने के साथ इमोशनली साउंड होना बहुत जरूरी है. पीएचडी स्कॉलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पीएचडी स्कॉलर्स इंटेलिजेंट हो, ये तो है, लेकिन इंटेलिजेंट तो बना जा सकता है लेटर ऑन ऑल्सो. When we are studying and then we are gaining the knowledge, we can become intelligent. But when we are not emotionally stable, emotional quotient is weak, then there is a problem in intelligence also. People are intelligent, but they are not emotionally intelligent, then there is a problem. Then, if you are emotionally intelligent, but then you are only talking about your own self emotionally, but not for others as a whole. So you are
just seeing you as an entity, but not you are surrounded by the society, you are surrounded by the world, you are not seeing that, then there is a problem. So that means spirituality. So spirituality is nothing to do with the religion. Every religion, every belief, every faith has a spiritual thing in itself, right? So the intellectual exploration of truth, because we are doing PhD, right? So PhD का full form क्या है? Doctorate of Philosophy, right? Yeah. Philosophy. So what is the meaning of philosophy? So philosophy is the intellectual exploration of truth. अगर इसका लिटरल मीनिंग लगाया जाए तो क्या है वो? द इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ. So what we are talking about here, we are not talking about any technical term over here. Then we are doing doctorate in philosophy. We are doing doctorate of philosophy in science. We are doctorate of philosophy in many other areas. But ultimately, it is exploration of truth, an intellectual exploration of truth, right? In any area, be it any area, right? So philosophy is a systematical study of existence, of our own self, knowledge, values, reason, and the mind. Because बॉम्ब बनाने वाला भी एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है. जो बॉम्ब बना रहा है, जो एक्सप्लोजन्स बना रहा है, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स बना रहा है, वो भी रिसर्च कर रहा है ना. रिसर्च तो वो भी कर रहा है, और बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा है, एकदम यूनिक चीजें बना रहा है. बट अल्टीमेटली वो क्या ट्रूथ के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा है, और इंटेलेक्ट काम कर रहा है, उसका क्या वैल्यूज हैं उसके एग्जिस्टेंस में, नॉलेज में, और एनालाइज किया उसने, रैशनैलिटी उसकी एक्सप्लोर की है. So this is what is these are the questions should come when we talk about the spiritual question. So why it is relevant in research and innovation? Because what is the meaning of life is spiritual intelligence. कि हम लोग ने बहुत सारी चीजें बना दी, बहुत सारी अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं? टेक्निकल जितनी भी चीजें हम बना रहे हैं वो हमारे आराम के लिए बना रहे हैं. क्यों? ताकि हमारा समय बच सके, है ना. अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 12 घंटे किसी काम में लगते थे पहले, तो ये मशीन्स के यूज की वजह से कार आ गई है, मुझे बैलगाड़ी में नहीं आना पड़ता यूनिवर्सिटी, तो मैं कार में आ रही हूँ, राइट? तो मेरा टाइम बच रहा है. मैं अब माइक्रोवेव में चीजें बना लेती हूँ, फ्रिज हो गया है ठंडा करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मशीन से हो रही हैं आराम से. तो एट द मैक्स मैं अपने पूरे दिन के 4 या 5 घंटे तो बचा लेती होंगी, जब मैं ये अच्छी अच्छी मशीन यूज कर कर अपनी लाइफ में ये सब काम कर रही हूँ. तो इसका मतलब वो जो 4-5 घंटे मैंने बचाए हैं वो किस में लगने चाहिए? बहुत क्वालिटी किसी में, क्योंकि इन्हें बचाए क्यों है वो? मशीन्स की इनोवेशन क्यों हुई है, क्यों इन्वेंशन हुई है? ताकि मेरी लाइफ आसान हो जाए, और आसान हो जाए, और मेरा काम कम समय में हो सके. और कम समय में हो सके, इसका मतलब जो समय बचा है उसको कहीं और यूज करना है, किसी अच्छी जगह पर यूज करना है. बट क्या फाइनली हम ऐसा कर पा रहे हैं क्या? अब भी हम जब भी पूछते हैं किसी से, तो वो यही बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है. We don't have time. But we are using various machines, but then also we do not have time. That means we are not asking ourselves where are we spending our time actually, which we are saving from the innovations. हम भी एक इनोवेशन करके सोसाइटी को दे देंगे, बट अल्टीमेटली वो किसी पर्पस का रहेगा या नहीं, या वो भी सिर्फ पेपर पब्लिश कर कर और हमारा 2 जगह नाम आ जाए उसके लिए रहेगा, बट अल्टीमेट गोल कंप्लीट ही नहीं होगा उससे. तो अगर ऐसी ही रिसर्च पूरी सोसाइटी करने लग गई, so finally we'll end up in nothing, we'll gain nothing out of it, right? So this is what is the meaning of life, what is real, what is right or wrong, and what is the nature of consciousness. ये सारे क्वेश्चंस अगर हमारे दिमाग में आते हैं तो वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो, और डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू फिलॉसफी. क्या हमें जानना है और कैसे जानना है, ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है. और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द इनर विजडम बियॉन्ड द आईक्यू एंड ईक्यू, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना. इनर विजडम है वो, आईक्यू और ईक्यू से बियॉन्ड है वो, राइट? और ये हमेशा बात क्या किस बारे में बात करती है? तो अभी तो हम फिलोसफी के बारे में बात करें, तो फिलोसफी क्या, मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज रियल, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ये रैशनल पे बात कर रही है, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इस पे बात कर रही है. बट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस क्या होते हैं? What is the transcend, what is the capacity of transcend ego, material attachments? What is the ability to find meaning in suffering and joy? Alignment with the higher principles. क्या है वो higher principles? Truth, compassion,
वननेस, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हम सुनते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज पहले बहुत सारे लोग होते थे एक फैमिली में, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, और चाचा चाची, बहुत सारे। और अब धीरे धीरे वो छोड़ कम होती जा रही है, और वो न्यूक्लियर फैमिली में, न्यूक्लियर मतलब सिर्फ पेरेंट्स, बच्चे, दैट्स ऑल, नो दादा दादी, नो चाचा ताऊ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो कंपैशन है वो धीरे धीरे लिमिट होता जा रहा है। और वननेस, कि हम एक नहीं रहे, हम लोग ने सबको एक दूसरे से अलग कर लिया। और वैसे ही रिसर्च भी है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, हम आइसोलेशन में रिसर्च कर रहे हैं, हमने ये काम किया। अब रिगार्डलेस ऑफ दैट इट इज मीनिंगफुल फॉर अदर्स और नॉट, it is meaningful for the society or not, we are doing this research and we are getting the results out of it, right? So this is what is a problem. And Dana Johar, who is popularized to it conceptualize the SQ term, spiritual quotient, he says that the intelligence with which we address and solve the problem, which is adding the meaning and value, is called the spiritual quotient. And that is what is spiritual intelligence. So these are the core values of spiritual intelligence: self-awareness, compassion, purpose-driven actions, detachment from results, ethical integrity. So हम क्यों चूज करते हैं अपने टॉपिक्स? हमने अगर पीएचडी के लिए कोई टॉपिक चूज किया, या हमने कोई भी टॉपिक चूज किया फॉर राइटिंग अ आर्टिकल और अ पेपर, हमें टीचर्स ने बहुत सारे टॉपिक्स दिए, उसमें से हम कोई चूज करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें, हम देखते हैं कि इन सब में से, इस लिस्ट में से विच इज इंटरेस्टिंग टू मी, एंड वेयर द इंटरेस्ट इज कमिंग फ्रॉम, इट इज कमिंग फ्रॉम आवर माइंड। माइंड क्या है? जिसको कहते हैं हम हिंदी में मन। सो उस माइंड से हमारा, इसमें मेरा मन लग रहा है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, राइट, या कर रही हूँ, राइट? सो इट कम्स फ्रॉम योर माइंड विच इज माई इंटरेस्ट, मेरा मन जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, राइट? एंड हु इज द मास्टर ऑफ माइंड देन? मास्टर ऑफ माइंड इज इंटेलेक्ट, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि, दिमाग। तो विच इज इंटेलेक्ट, एंड हु इज द मास्टर ऑफ इंटेलेक्ट देन? द मास्टर ऑफ इंटेलेक्ट इज वन इनर सेल्फ, और द सोल, वी कैन, जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किया, inner self or soul, which is a driving force of your intellect, your mind, and your interests. So this is the hierarchy. So are you choosing it from this hierarchy, from the inner self, or from your interest only, or from your what, क्या मन कर रहा है हमारा? क्योंकि मन तो हमारा टीवी देखने में भी कर रहा होता है, मन तो हमारा मूवी देखने में भी कर रहा होता है, लेकिन हमारी बुद्धि क्या कहती है उस समय, कि नहीं, कल एग्जाम्स है, हमें पढ़ना है, अभी 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 मूवी नहीं देख सकते। सो दैट मीन्स इट इज, मन इंपॉर्टेंट नहीं है, मन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंटेलेक्ट है, what we are doing is. And then comes your spiritual thing, then comes your soul, and then comes your inner self. Let us move ahead. ये इन तीनों में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करें अगर हम, तो यहाँ पर बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, सबसे पहला क्या है? 3 principle of dimension of intelligence which activates the whole brain. ये तीनों, IQ, EQ and SQ. अगर, और फिर both IQ and EQ are important, but they are not enough to maintain the top performance and provide enduring fulfillment. कि हमें उससे कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा अगर हम IQ और EQ दोनों हैं, लेकिन फिर भी वो फुलफिल करने वाले नहीं है जब तक कि SQ नहीं होगा। तो थर्ड नंबर पे बोल रहा है, इन एडिशन टू IQ एंड EQ, द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नेसेसरी, एंड SQ एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इसको हम बोलते हैं। और IQ and EQ are about thought and emotions, and SQ is about meaning and purpose. So ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो ड्राइविंग फोर्स है, because it is a synchronous process of whole brain. SQ is a spiritual intelligence and it is a synchronous processing of whole brain. राइट, बहुत इजी है इसको। अब कोई कहेगा कि हम कैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस करें? बिकॉज वी ऑल एक्सपीरियंस एसक्यू स्पॉन्टेनियसली एट टाइम्स, वी डू इट। जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे अंदर होती है कि हम ये करें या ना करें, इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, ये सेटिस्फाइड करने वाला है या नहीं है हमारा। यदि हम डीपली बैठकर सोचें तो हमें समझ में आता है ये चीज कि ये हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्पिरिचुअल जो क्वोशंट है हमारा।
बट स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स ऑफ एसक्यू आर रेयर, कम आते हैं वो हमारे दिमाग में, और अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। समटाइम्स हम उन्हें प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते, वो आ रहे हैं थॉट्स एंड चले जा रहे हैं वो थॉट्स। कई बार हमें लगता है हम बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं कि हम सोसाइटी के लिए ये कर दें और हम दुनिया के लिए ये कर दें, जो कि बहुत मीनिंगफुल हो, राइट। हम सोचते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, और अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे इंटरव्यूज में जनरली हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलकर आते हैं, जब हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सोसाइटल कनेक्ट है वो बहुत अच्छा है, दे आर डूइंग समथिंग फॉर, एंड उसको बहुत उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो, इन दोनों में सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल अलग है। बहुत सारा पैसे कमाने में भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे कमाने से मना कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये कहने का मतलब है। सो जब आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन और आने जाने वाले जो थॉट्स हैं उस पर हम फोकस करते हैं, तो क्या होता है, हम इंगेज हो जाते हैं उस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में, और फिर एसक्यू बिकम्स आवर मोस्ट पावरफुल पर्सनल रिसोर्स, कि वो हमारा पर्सनल रिसोर्स बन जाता है। जब हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन हाई रहता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी हाई रहता है ऑटोमेटिकली। और फिर हम बहुत, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत कंपैशन के साथ में, अमित सर खुद ये इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, ये मतलब बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स में। क्यों? क्योंकि इनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई है। He empathizes with the student. He always give the very meaningful suggestions to the students, which are very good for them to for their lifetime. तो ये जो चीजें यहाँ, ये इनको इमोशनली भी इंटेलिजेंट बना देती है, और ऑटोमेटिकली इंटेलेक्ट भी इनका इंटेलिजेंट बना देती है। तो ये दोनों चीजें ही हैं, मतलब हमको ये चीज डेवलप हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर ये है ऑलरेडी। नाउ हु इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज आइंस्टीन इज सेइंग, एक्चुअल रिसर्च क्या है। कई बार हम अपने हमको बहुत सारी जगह से नो आंसर्स मिल जाते हैं, और कई लोगों को 3 साल की पीएचडी है तो हमको कितना टाइम लग जाता है, उसमें 4 साल लग जाते हैं, या हमें 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं समटाइम्स। तो एल्बर्ट आइंस्टीन क्या कह रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज हु सेड नो टू मी, इट्स बिकॉज व्हेन आई डिड इट माई सेल्फ। बट हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट क्यों हो जाता है करने के लिए पीएचडी कंप्लीट? क्यों? क्योंकि हम नो तो सुनते रहते हैं, लेकिन हम ये नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट आइंस्टीन कह रहे हैं ना, उस पर हम ध्यान नहीं देते। इट्स बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ, एंड वेन यू आर डूइंग इट योर सेल्फ देन यू बिकम अ रिसर्चर। अदरवाइज तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे हम। जब हम खुद कर रहे हैं उस चीज को, क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी जगह से नो मिल गया है, तो लेट अस ट्राई इट आवरसेल्फ। क्योंकि ये जो कंप्यूटर साइंस की हम बात कर रहे हैं, या फिर आईटी की बात कर रहे हैं, या कोई भी रिसर्च फॉर दैट मैटर, रिसर्च हमको खुद करनी होती है, कोई और हमको करके नहीं देता है। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी हमको खुद के अंदर खुद ही जनरेट करनी होती है, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता है। For example, something is cooking food for us, it can be done by others also. But the spiritual thing cannot be done by others. We have to do it ourselves, and then only we'll gain it. Right? And ये क्या बोल रहा है कि ये और क्या बोला है, insanity क्या है, doing the same thing over and over again and expecting the different results. ये भी पीएचडी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि हम सेम चीज कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि डिफरेंट रिजल्ट्स आए उसके, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। नाउ तो एक्चुअल रिसर्च क्या है, दैट डू इट योरसेल्फ, ट्राई इट योरसेल्फ, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट्स व्हेन यू आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। सो ट्राई समथिंग न्यू एंड एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। फेल हो जाए तो कोई बात नहीं। एडिसन के बारे में बोला जाता है ना, कितने बार, मुझे काउंट याद नहीं है, किसी को याद है तो वो चैट बॉक्स पे लिख सकता है, कि एडिसन ने कितनी बार बल्ब बनाया और फेल हुआ। अमित सर, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक 99 टाइम्स समथिंग। हाँ, आई थिंक ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। हाँ, मैंने ये तो सुना कि घोड़े की पूंछ तक उन्होंने ट्राई करी। जस्ट इमेजिन। ओके, सी, फिलामेंट के लिए। तो उन्होंने ट्राई की, और अल्टीमेटली हम उनको किस लिए याद रखते हैं, कि उनके फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए याद रखते हैं, या फिर उनका जो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ उसके लिए याद रखते हैं? एक सक्सेस। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ उसके लिए याद रखते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारी जो लर्निंग थी वो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखी। क्यों? और किसी ने पूछा उनसे कि आप इतनी बार फेल हुए, इससे आपका आपका तो बहुत समय नष्ट हो गया। उन्होंने बोला नहीं,
मुझे ये पता चला कि किस किस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता है, वो सारे मेथड्स मुझे पता लग गए। और दिस इज ऑल्सो अ रिसर्च। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं और उसमें हम फेल हो रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ रिसर्च कि ये इस तरह नहीं हो सकता है। यू कैन पब्लिश पेपर आउट ऑफ इट कि I have tried this particular thing and it is not coming. This result is not coming. So hypothesis is changed, but result is something else. But this result is your result, unique result, because you have experimented that. और उसके बाद ये आउटकम आया है, एक्सपेक्टेड नहीं है मे बी, बट जो भी आया है वो है तो आउटकम ही ना, और वो आप ही का आउटकम है, राइट? तो ये एक सेटिस्फैक्शन देता है हमको। सो दिस इज व्हाट इज सेइंग। अब हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसको श्रीमद् भगवद गीता से, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा स्पिरिचुअल साइंस है और एक ऐसा साहित्य है, ग्रंथ है बोल सकते हैं हम, जो कि सबके लिए रिलेवेंट है। इट इज नॉट वेरी रिलीजियस स्पेसिफिक, और हम कह तो देते हैं इसको ये हिंदू धर्म का ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर ह्यूमन काइंड, और बहुत सारी लर्निंग्स हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, ओपनहाइमर, बहुत सारे लोगों ने बोला है, विवेकानंद, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उन सब ने ये कहा है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर हमको लाइफ के मीनिंग्स मिले हैं, राइट? इट इज नॉट अबाउट गॉड और एनीथिंग एल्स, बट इट इज अबाउट व्हाट वी आर लर्निंग आउट ऑफ इट। सो अर्जुन और पीएचडी स्कॉलर्स की हालत एक जैसी है ना? इससे सब एग्री करते हैं क्या? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। है ना? तो बस देखो अर्जुन जितनी कैपेसिटी है क्या स्कॉलर्स में, ये सोचने वाली बात है। अर्जुन जैसी सब में निष्ठा है है वो क्या, भक्ति है सब क्या, में है वो समर्पण है क्या? कैपेसिटी। समर्पण उतना है क्या? बाकी तो स्थिति तो एक जैसी। स्थिति एक जैसी है, बिल्कुल अमित सर सही कह रहे हैं कि अर्जुन और पीएचडी स्कॉलर की एक जैसी स्थिति है। आप लोगों ने शायद पहला जो चैप्टर है, अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का, तो उसमें ये लिखा है कि उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। और विषाद का मतलब होता है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन, कि वो इतना डिप्रेस हो गया कि उसके हाथ से धनुष छूट जाता है, उस गांडीव जो उसको कहते हैं वो गिर जाता है, वो बोलने के लिए नहीं कैपेबल होता, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, और उसका मुंह सूखने लग जाता है। और इवन जो जो डिप्रेशन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं जब यूएस में इसकी पढ़ाई करने के लिए गया, तो मैंने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता में जो 8 लक्षण अर्जुन की हालत के लिखे हुए हैं, वो सेम लक्षण सीवियर डिप्रेशन के मरीज के भी होते हैं। लेकिन 45 मिनट्स में अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, और उसके बाद में उसने सबका सफाया कर दिया, और ही वॉज अ विनर ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या है, जब राइट हमको सुपरविजन मिले, और हमारा हम उस एंगल से उस चीज को देख पाए, तो हम भी वो चीज अचीव कर सकते हैं। जब अर्जुन अचीव कर सकता है इन 45 मिनट्स, इफ द राइट guidance is provided to him and he is asking the right questions also. This is very important, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक भी आंसर ऐसा नहीं किया जो अर्जुन ने नहीं पूछा। अर्जुन ने पूछा तो श्री कृष्ण ने आंसर किया। इसका मतलब क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द राइट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, द राइट आंसर विल बी गिवन। क्योंकि श्री कृष्ण के पास तो नॉलेज है, लेकिन अर्जुन को वो नॉलेज चाहिए या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि नॉलेज तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन हम व्हाट नॉलेज वी आर सीकिंग फॉर विल बी अवेलेबल टू अस। इफ यू आर नॉट सीकिंग फॉर दैट नॉलेज, इट विल नॉट बी अवेलेबल टू अस। समटाइम्स हम बहुत सारी चीजों को ब्लेम करने लगते हैं कि हमारा सुपरवाइजर हमें नहीं से ढंग से सुपरवाइज करा, या हमारी यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है, या हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हमारे फ्रेंड्स ठीक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अल्टीमेटली व्हाट सेल्फ एनालिसिस हम करें, तो हमारे क्वेश्चंस ही ठीक नहीं है। अगर हमारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, तो आंसर हमें सही कहीं ना कहीं से सही मिल ही जाएगा। तो द डिलेमा ऑफ पर्पस, सबसे पहला अर्जुन का क्राइसिस क्या है? ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, अर्जुन इज क्वेश्चनड हिज हाई पर्पस। हाउ कैन आई फाइट अगेंस्ट माय ओन किन्स? उसके सब रिश्तेदार हैं, कोई उसके दादा हैं, कोई उसके गुरु हैं, कोई उसके भाई हैं, तो वो कैसे लड़े? और पीएचडी स्कॉलर का क्राइसिस क्या होता है कि इज माय वर्क ट्रूली मीनिंगफुल और नॉट, और एम आई चेजिंग, आई एम जस्ट चेजिंग द डिग्री और पब्लिकेशन? ये बहुत बड़ा डिलेमा है, दोनों का डिलेमा है अर्जुन की तरह ही। तो श्रीमद् भगवद गीता इसका आंसर देती है कि इट इज अ बैटल, इट इज बेटर टू फेल इन वन ओन ड्यूटी देन टू सक्सेड इन अनदर्स। कि हम सोचें कि हम उसके जैसा कुछ कर लेते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर वो कॉपी पेस्ट रिसर्च हो जाएगी। यदि हम कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तो इट इज बेटर टू फेल इन आवर ओन ड्यूटी
हम अपनी ड्यूटी में फेल हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को कॉपी ना करें। और स्वधर्म है सुप्रीम, ऐसा लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये एक डायलेमा का आंसर है। दूसरा है कि सेल्फ डाउट एंड इम्पोस्टर सिंड्रोम is second number. So what is that? So hum sometimes we get into this question that am I not capable of doing this? PhD, अब अर्जुन ये कहता है कि क्या मैं इसके लिए केपेबल नहीं हूँ। 2.7 में जब अर्जुन जो श्री कृष्ण उनको आंसर करते हैं 2.11 में, तो वो पूछते हैं कि एम आई नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। PhD स्कॉलर्स का भी यही थॉट होता है, एम आई ट्रूली केपेबल ऑफ डूइंग दिस रिसर्च और नॉट, अदर सीम्स बेटर टू मी। So this is the problem. And then emotional pressure and mental struggle, ये उसका। और गीता क्या रिस्पॉन्ड करती है सेल्फ डाउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम का, कि ये अगर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा ये सोचें कि ये मुझे नहीं पीट सकते हैं, है ना। क्लैरिटी और स्ट्रेंथ सेल्फ बिलीफ से आती है कि हमारे ऊपर दुनिया तो बहुत कृपा कर रही है, लेकिन हम अपने ऊपर ही कृपा नहीं कर रहे अगर, तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सेल्फ डाउट और इम्पोस्टर सिंड्रोम के लिए। और इमोशनल प्रेशर एंड मेंटल स्ट्रगल, सॉरी। अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट क्या था? ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय सॉरो, कंपैशन एंड अटैचमेंट। एंड PhD स्कॉलर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो इमोशनल स्ट्रेन हो जाता है। कई बार फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, कई बार उसको लगता है मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं इसे। कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, और कई बार एकेडमिक प्रेशर होता है। तो इसका क्या इलाज है? परफॉर्म योर ओन ड्यूटी विथ इक्वेनिमिटी। सो इक्वेनिमिटी क्या चीज है? समता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि हम योग में स्थित होकर कर्म करें। योग में स्थित होने का मतलब क्या है? रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक्ट करना हमारे हाथ में है। हो सकता है उससे अच्छे रिजल्ट्स मिले, हो सकता है उससे नहीं मिले वो रिजल्ट्स। तो हम लोग जबरदस्ती अपनी परफॉर्मेंस क्यों डिग्रेड करें उसकी वजह से? हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ द IIT स्टूडेंट, IIT एस्पिरेंट इज अपीयरिंग इन द IIT एग्जाम, ऑब्वियसली he is looking forward for getting into the IITs, right? But everyone is not getting into IIT. Out of all the aspirants, few of them are only getting into it, but all are aspiring, right? And who are getting it? Because they are not stressed that are we going to get it or not. But we'll put what is in our hand is we'll put all our effort to get into it. But मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन हम अपना सारे एफर्ट्स लगाएंगे उसमें कि हम वो अचीव करें। और जब अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या करें? अभी जैसे कोटा में इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, बहुत सारी और जगह पर, तो क्या किया हमने कि हमने उसी एक्सपेक्टेशन से अपने आप को चिपका लिया कि ये होना ही चाहिए तब तो मेरी लाइफ है, और ये नहीं हुआ तो ये मेरी लाइफ नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप के कारण भी ऐसा होता है कई बार। लेकिन अगर ये हुआ तो मुझे क्या करना है, और ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, ये प्लानिंग भी कर लेना चाहिए हमें। प्लान बी should always be available. And if you're giving stress on all the what is expectation, we'll go into depression, कि हम अपना पूरा पोटेंशियल लगा भी नहीं पाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा हु इज नर्वस 90s, हु इज नर्वस 90s? तेंदुलकर, है ना। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, बट बहुत बार वो 90s में आउट हुआ। क्यों? क्योंकि उसके वो प्रेशर ले लेता था कि मुझे 100 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, और उसकी वजह से 90s में बहुत बार आउट हुआ, मैक्सिमम टाइम्स 90s में आउट हो गया। और दूसरा है क्योंकि रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई उसकी वजह से। और दूसरा है कैप्टन कूल धोनी। तो कैप्टन कूल क्या कर रहा है? वो प्रेशर नहीं ले रहा, रिजल्ट जो भी होगा मैं अपना गेम बेस्ट दूंगा। उसकी वजह से बहुत सारे वर्ल्ड कप्स जीते उसने। तो ये चीज है कि हम फोकस तो करें रिजल्ट पर, बट उससे डिस्टर्ब नहीं हो कि व्हाट आर वी गेनिंग आउट ऑफ इट और नॉट गेनिंग आउट ऑफ इट। वो एक अलग मैटर है, राइट? वो होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे ऑलमाइटी के हाथ में होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हम कर्म कर सकते हैं, अच्छे से पोटेंशियल के साथ कर्म कर सकते हैं। और समता में स्थित रहने का मतलब क्या है? कि
हमको जब हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसमें हम डिस्टर्ब ना हो. दिस इज व्हाट इज इमोशनल प्रेशर एंड मेंटल स्ट्रगल. एंड सीकिंग गाइडेंस अमिडस्ट कंफ्यूजन. अर्जुन क्या कहता है? आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, आई सरेंडर टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी. श्री कृष्ण से कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए. तो हम पीएचडी स्कॉलर भी अगर बीच में कहीं स्ट्रक हो जाए तो एक्सेप्ट इट कि आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई एम नॉट इन द राइट पाथ, आई नीड द क्लियर गाइडेंस. राइट, गो टू योर सुपरवाइजर्स, गो टू योर टीचर्स एंड आस्क देम द राइट पाथ. राइट, और कैसे approach with the wise, approach the wiser who is your supervisor or who is your guide with humility, inquiry and service. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमिलिटी, इंक्वायरी एंड सर्विस. समटाइम्स वी आस्क द क्वेश्चन जस्ट टू चेक द नॉलेज ऑफ अदर्स. This is not the right approach to ask the questions, right? It is always the right approach to ask the question that I am confused and I am seeking for guidance with humility and seva, service, right? तो ये एक बहुत बहुत, और 6th चैप्टर में ये दिया हुआ है श्रीमद् भगवद गीता के. और सबसे लास्ट है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, जो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है. दैट यू हैव द राइट टू वर्क बट यू डू नॉट हैव not to the fruits of action. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. लेकिन उसकी वजह से हमें काम ही नहीं करें ऐसा नहीं हो जाना है. राइट, सो इसमें इसके बाद वाला एक और श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वत कर्मणि. इसका मतलब ये होता है कि हम काम करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल हमारे अधिकार में नहीं आता. फल की इच्छा तो करें लेकिन फल हमारे अधिकार में नहीं है, ये कहा है भगवान. इच्छा तो करेंगे ही नहीं, तो अगर मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं उसकी इच्छा ही नहीं कर रही हूँ तो मैं कैसे बन पाऊंगी आईआईटीएन. राइट, तो वो इच्छा तो करनी है, लेकिन उसमें जो भी हमें मिल रहा है अल्टीमेटली यस और नो, उसमें डिस्टर्ब नहीं होने के बारे में कह रहे हैं. और ये कह रहे हैं, कई बार कोई कहेगा कि हाँ फल में तो जब इच्छा ही नहीं रखनी है और फल में तो हमारा अधिकार ही नहीं है तो फिर काम ही क्यों करना है. उसके लिए भी उसके लिए भी श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माते संगोस्त्व कर्मणि, है ना. माँ कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि. इसका मतलब नहीं कर्म करने में भी हमारा जो ड्यूटी है वो तो हमें परफॉर्म करनी है. सो जस्ट एज अर्जुन स्टूड पैरालाइज्ड बाय द डाउट ऑफ द बैटलफील्ड, अ पीएचडी स्कॉलर ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन द मेंटल क्रॉसरोड्स. एंड द भगवद गीता टाइमलेस टीचिंग्स, purpose, duty, clarity of thoughts, emotional balance, seeking guidance and detachment from outcomes. ये एक प्रोफाउंड गाइडेंस है, और जिससे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको बहुत बहुत दे फील एम्पावर्ड. सो डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और डिटैचमेंट अगर होगा तो वन कैन नेविगेट द स्कॉलर्स जर्नी विद ग्रेस, जस्ट लाइक अर्जुन did by the Krishna's wisdom by his side. Now, if you have any question, you can ask. साथियों, फ्रेंड्स, लर्नर्स, पार्टिसिपेंट्स, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है. आपको भी मिल रहा होगा, आई डेफिनेटली बिलीव. बट आप पूछेंगे, डाउट्स क्लियर होंगे तो आत्मसात कर पाएंगे. Rahul Jain is raising his hand. राहुल जैन. राहुल हैंड तो नहीं दिख रहा है. ओके. Okay, Rahul Jain, your mic is enabled. If you want to ask something, you can unmute yourself and ask. Okay, no problem. Just move ahead. So, role of Bhagavad Gita in developing this spiritual intelligence, because it is a philosophical foundation for action without attachment. कोई भी जो शास्त्र है या कोई भी यहाँ पर कहीं पर भी विदाउट अटैचमेंट की बात नहीं होती है. कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट होता है और उसके बाद ही हम एक्शन करते हैं, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, या फिर वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं सोच पाती है कि इससे हम सबका फायदा हो, किसी का भी नुकसान ना हो.
ऐसा जनरली नहीं सोच पाते हैं ना, जब तक कि हम एक्शन से अटैच, विदाउट अटैचमेंट के एक्शन नहीं करते। हम अटैच नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम जब किसी का बुरा और किसी का अच्छा चाहेंगे ही नहीं, तो हम अच्छा ही करेंगे। हमें करना वही है जो कि हमारा इंटेलेक्ट कह रहा है, हमारा स्पिरिचुअलिटी कह रही है, और अटैचमेंट नहीं करना उसके साथ में, तो ऑटोमेटिकली वील डू गुड रिसर्च। पहले इंडिया में इतनी रिसर्च होती थी कि इंडिया का लोहा माना जाता था, है ना। सीवी रमन और कितने आर्यभट्ट, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ से निकले हैं, और अब हम सब लोग टेक्नोलॉजी के स्लेव बन गए। इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा वर्ल्ड को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं शुरू से, और अब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर एक्शन विदाउट अटैचमेंट इज अ बहुत बड़ा लाउड इस श्रीमद् भगवद गीता का ये स्टेटमेंट है। अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे एक्शंस बहुत क्वालिटी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अ गाइड फ्रॉम द इनर क्लैरिटी एंड आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसके लिए चाहिए गाइड? सुपरवाइजर क्यों चाहिए? सुपरवाइजर चाहिए कि हमारी इनर क्लैरिटी आ जाए, और जो आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो हमें समझ में आ जाए। ये दो ही चीज समझाता है सिर्फ सुपरवाइजर, और कुछ नहीं। हम कहते हैं सुपरवाइजर हमें पीएचडी करके नहीं देता है, लेकिन हमारे अंदर जो डाउट आ रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है कि क्या कैसे करना चाहिए, वो क्लैरिटी देता है, नेविगेशन करता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द रिसर्च फ्रेटर्निटी, ये बताता है। ये दो काम है सुपरवाइजर के मेन। और तीसरा है, ये सुपरवाइजर को भी सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता, नॉट ओनली स्कॉलर्स बट सुपरवाइजर को भी। एंड द थर्ड वन इज हेल्प बैलेंस इंटेलेक्ट एंड इमोशन, बुद्धि और भाव। क्योंकि बुद्धि तो हमारी किस चोर की भी बहुत चोर है, और उसकी भी बहुत तेज होती है, बहुत अच्छे से चोरी करता है वो, किसी को पता ना चले, रंगे हाथों पकड़ा ना जाए। ऐसा तो इसका मतलब बुद्धिमान होना ही काफी नहीं है, इमोशन, भाव होना भी काफी है, कि हम किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं हमारे एक्ट से। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। आप रिसर्च कम्युनिटी बनाइए, अपने पीयर जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ में डिस्कस कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को। ऐसा फोरम बनाइए जहां पर आप सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, सारे स्टूडेंट्स, इवन ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी। मेक अ फोरम एंड डिस्कस द थिंग्स, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो ग्रुप बनेगा ना, संगठन में शक्ति है। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली एक अच्छा ग्रुप बनेगा, और अल्टीमेटली आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव करोगे। हम सोचते हैं कई बार कि हम अपनी सारी चीजों को छुपा के रख लें कि हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, या हम उससे कोई फायदा हो जाएगा, नहीं। और ऐसी ही रिसर्च है हमारी जो किसी को बताते ही अगर वो कॉपी कर लेगा, देन तो हमारी रिसर्च किसी फायदे की ही नहीं है। तो हम शेयर करेंगे अगर इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, तो वो बढ़ेगी, और हमें भी आइडिया आएगा उससे। सो एक आपका एक कोई ग्रुप होना चाहिए, पीयर, विच यू कैन ट्रस्ट, एंड देन यू कैन शेयर द थिंग्स विद देम, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास ये 4-5 साल होते हैं जिसमें हम कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में सब ब्रेड एंड बटर में लग जाते हैं, और उसके बाद में उनके पास वो टाइम नहीं होता, राइट। सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड देन ये हम छोटा सा देखेंगे अभी, निष्काम कर्म और शोध, वर्क विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, डू योर रिसर्च एज सेल्फलेस सर्विस। कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, सेल्फलेस सर्विस की तरह करेंगे, तो हमारा भी, जब हम सबका भला करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भी भला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वर्किंग विद मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, if I am only looking for my salary to be incremented, right? I am not concerned about others. Okay. So what will happen? एक बार तो मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, बट ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हो पाएगी ना, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ही अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन अगर सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अच्छे के लिए काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, कोई एक इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके सारे एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर हम खुद के लिए ही सोचेंगे सिर्फ, तो हो सकता है हमारा पेट ना भरे, लेकिन अगर हम सबके लिए सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा भी अच्छा हो जाएगा। बिकॉज वॉट हम शुरू से सिर्फ लेते हुए आए हैं लोगों से, लेकिन अब जब सर्विस करेंगे, दूसरों को देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा भी अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 में सब दुखी थे, क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग दुखी थी। और पार्टीज हो रही होती हैं, घर में कोई फंक्शन होता है तो सब सुखी होते हैं, सब मजे में मजे कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी सराउंडिंग सुखी होती है। तो जब हमारी सराउंडिंग अच्छी होती है, खुश होती है, तो हम भी खुश रह पाते हैं। और अगर हमारी सराउंडिंग दुखी होती है, तो हम भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली, इसलिए हमें ये चीज ये सिखाती है कि हम सेल्फलेस सर्विस करें, दूसरों के लिए करें, तो ऑटोमेटिकली हम भी खुश हो जाएंगे। जैसे कि एक एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को।
एक बार एक मदर होती है और उसका बच्चा स्कूल से आता है, और स्कूल से आता है तो वो अपना बैग फेंक देता है, और वो खाना बनाती है उसके लिए बहुत अच्छे से, जैसे हमारी मम्मी सब बनाती है अपने हमारे लिए खाना। और जैसे ही वो आता है तो अपना बैग फेंकता है और जल्दी से मम्मी क्या बनाया है पूछता है, और मम्मी उसको बहुत अच्छे से खाने के लिए देती है। और वो खूब, मम्मी ने कुछ नहीं खाया अभी तक, क्योंकि मम्मी कह रही है बच्चा आएगा उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, वो खा लेगा उसके बाद मैं खाऊंगी। अब बच्चा खा रहा है और खूब स्वाद ले लेके खा रहा है और खूब हंस रहा है वो, और खूब खुश हो रहा है कि कितना टेस्टी खाना बनाया है। तो अब कौन ज्यादा खुश हो रहा है, मदर खुश हो रही है या बच्चा खुश हो रहा है? उसको देखकर मदर ज्यादा खुश हो रही है या बच्चा ज्यादा मदर। खुश हो रहा है? मदर मदर। खुश हो रही है। तो मदर ने तो मदर। कुछ खाया ही नहीं है, मदर का तो पेट ही नहीं भरा, मदर को तो पता ही नहीं है टेस्टी खाना है कि नहीं है, लेकिन फिर भी मदर खुश हो रही है। क्यों? क्योंकि शी इज सर्विंग अदर्स, शी इज सर्विंग हर किड। तो जब बच्चा खुश हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो खुशी उसके अंदर भी आ रही है। वैसे ही हम जब किसी को देते हैं, और जब देने का सुख आ जाए हमको, तो हम जो लेने का सुख है ना अभी तक, वो हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जो अरे देने में सुख है ना वो नहीं है उसमें। मदर्स डे है अभी कल। राइट, सो मदर्स डे भी गया है अभी, है ना कल। तो वी ऑल नो सेल्फलेस सर्विस कौन करता है सबसे ज्यादा? अगर हम सेल्फलेस सर्विस में दुनिया की बात करते हैं, चलो गॉड ऑलमाइटी तो करते ही है सेल्फलेस सर्विस, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो देते हैं। बट अभी जो हम जीवित देख पाते हैं अपने सामने, वो कौन होते हैं? मदर फादर, हमारे पेरेंट्स जो सेल्फलेस सर्विस करते हैं। तो वो कितने खुश होते हैं ना, उनको अल्टीमेटली उनको भी मिल रहा है ना, जो बहुत सेल्फलेस सर्विस करते हैं और बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं और बहुत उनको भी रिटर्न में बहुत कुछ मिलता है। मैम, हाँ जी सर। हमारे जैसे विद्यार्थी अच्छा करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितनी हाँ खुशी होती है। टीचर्स, सेकंड टीचर्स, आई जस्ट वांटेड टू से दैट ओनली, अमित सर ने मेरी बात छीन, कि मदर मदर फादर पेरेंट्स तो हैं ही, और दूसरे टीचर्स हैं। आपका हमसे 4 गुना पैकेज ज्यादा लगेगा तो टीचर्स बहुत खुश होंगे। अगर हमारा स्कॉलर बहुत अच्छे पब्लिकेशंस करेगा, बहुत अच्छा अचीव करेगा, तो टीचर बहुत खुश होगा, उसका जो सुपरवाइजर है बहुत खुश होगा। नॉट बिकॉज उसका नाम आ रहा है उस पेपर में, नहीं भी आ रहा है, वो बाद में जाके रिसर्चर बन जाता है, पीएचडी अवार्ड होने के बाद में बहुत बड़ा, बहुत अच्छी रिसर्च लैब में काम कर रहा है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विल बी मोर देन हैप्पी। So they, because they are good, they giving the selfless services, so they are returning the happiness, bliss in return, है ना ये। और उसके बाद में ये तो हमने देख ही लिया, अर्जुन का संकट और शोधकर्ता की दुविधा। शोधकर्ता का धर्म क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी? धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है ओन ड्यूटी, कि हमारी ड्यूटी क्या है। सो डूइंग रिसर्च विद इंटीग्रिटी एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, हमारा कॉन्शियस क्या कहता है, हम इथिकल रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो हम बहुत बड़ा अचीव भी कर लेंगे, हमें अवार्ड भी मिल जाएगा, रिसर्च अवार्ड, लेकिन वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। कहीं ना कहीं हम डरते रहेंगे, कहीं हम पकड़े ना जाए, कहीं हम पकड़े ना जाए, हमने गलत किया है। सो इथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस ये हमारी ड्यूटी है, ये शोधकर्ता का धर्म है ना। और उसके बाद में समत्व योग, स्टेइंग इमोशनली बैलेंस इन सक्सेस एंड फेलियर, क्योंकि फेलियर भी होगा, सक्सेस और फेलियर दोनों होगा। दो टीम्स खेल रही है तो एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, ये तो है ही अल्टीमेटली, है ना। तो ये इसमें डिस्टर्ब नहीं होना। और साधन के रूप में शोध, इसका मतलब क्या है? ट्रीसिंग रिसर्च टीचिंग सॉरी ट्रीटिंग रिसर्च एज अ सेक्रेड ऑफरिंग, यज्ञ टू ह्यूमैनिटी। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ में सब अपनी अपनी छोटी छोटी आहुति डाल रहे होते हैं और वो अग्नि में चली जाती है सारी। इसका मतलब क्या है? पूरी वर्ल्ड, पूरी सृष्टि एक यज्ञ है। इट इज ऑल यज्ञ। वट एवर वी आर डूइंग, बीट स्मॉल, क्योंकि एक छोटा बच्चा होगा वो छोटा सा पत्थर उठा के दे सकता है, एक छोटी सी चीज दे सकता है, पापा को कार की चाबी पकड़ा सकता है। एक बड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ उठा सकता है, वो बड़े बड़े पत्थर उठा सकता है, एक बहुत बड़ी गाड़ी चला सकता है, एक फाइटर जेट उड़ा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो उसका लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है, लेकिन दोनों ही ह्यूमैनिटी पे यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। छोटा व्यक्ति है जिसके पास कम कैपेबिलिटी है वो कम दे रहा है, एक बड़ा कैपेबिलिटी है उसके पास वो बड़ा दे रहा है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो यज्ञ है उसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे, हम जो भी दे रहे हैं सोसाइटी को, वो छोटा हो या बड़ा हो रिजल्ट, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चाहे एक छोटा रिजल्ट है, वो बाद में छोटे 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 बहुत सारे रिजल्ट्स बन के और एक बड़ा रिजल्ट बन जाएंगे। Right? So this is what is treating research as a sacred offering and yagya to the humanity. And being calm and wise mentor like Krishna guiding Arjun. ये सब
सुपरवाइजर्स के लिए है कि हम कैसे सुपरवाइजर बने, कि हम काम और वाइज मेंटर बने। जैसे कृष्ण थे, कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को सुना, उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी और उसके बाद अपनी राय दी। समटाइम्स हमको लगता है कि हम ज्यादा पढ़े हुए हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं बीइंग सुपरवाइजर, तो हम बच्चे की प्रॉब्लम सुनने के पहले ही उसको आंसर करने लग जाते हैं। सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता, दैट लिसन टू द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। मे बी हम बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हो बट वो रिलेवेंट ही नहीं है उसके लिए। तो रिलेवेंट क्या है, वो हो सकता है डिफरेंट सजेशन हो और छोटा सजेशन हो, लेकिन उसके लिए रिलेवेंट हो, उसकी प्रॉब्लम को हल कर दे वो। तो ये हमें कृष्ण से सीखते हैं हम भगवत गीता में। और अहंकार का त्याग, स्टेइंग हम्बल डिस्पाइट ऑफ नॉलेज एंड अचीवमेंट्स। आप लोग बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हो, बहुत अच्छे आपके पब्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंस्पायर आप कब करोगे, जब आप नॉलेज भी मिल गया, आपको अचीवमेंट्स भी हो गए, लेकिन आप हम्बल हो, आप में अहंकार नहीं है। क्योंकि एक चाय भी बनाते हैं ना हम, तो चाय की पत्ती कहीं से आती है, चाय के बागान कहीं होते हैं, चीनी कहीं से आती है, शुगर केन कहीं उगता है, पतीला कहीं से आता है, गैस स्टोव कहीं से आता है, सिलेंडर कहीं से आता है, पानी कहीं से आता है, और इतने सारी चीजें मिलकर फिर एक चाय बना पाते हैं हम। तो एक रिसर्च का आउटकम सिर्फ हमारा हो गया क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारी चीजों का योगदान है। तो उस उनके प्रति हम्बल होना, अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा, उसमें अहंकार नहीं आ जाना हमारे अंदर। तो नॉलेज और अचीवमेंट तो हो हमारे, लेकिन हम हम्बल रहे, ह्यूमिलिटी रहे हमारे अंदर। जो हम्बल होते हैं वो बहुत ग्रो करते हैं। और उसके बाद में है कि अनासक्ति और शोध, लॉन्ग टर्म फोकस विदाउट ऑब्सेशन ओवर द शॉर्ट टर्म गेन्स। कई बार हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू केदारनाथ, बहुत सुंदर जगह है, सब जानते हैं, आजकल तो वो डेस्टिनेशन बन गई है घूमने की। हालांकि उसके अलग महत्व है स्पिरिचुअलिटी के, लेकिन हम अगर वहां जा रहे हैं तो रास्ते में भी बहुत सुंदर सुंदर जगह आएंगी, लेकिन हम उतर तो नहीं जाएंगे रास्ते में भी बस से या जिससे भी हम जा रहे हैं। हम अल्टीमेट गोल पर जाएंगे ना। शॉर्ट टर्म गेन्स भी हमारे छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गेन क्या है हमारा, उस पर फोकस रहकर हमको शॉर्ट टर्म गेन्स को एंजॉय तो करना है, लेकिन वहां पर रुक नहीं जाना है ना, बड़े चलना है आगे, तब हम अल्टीमेट गोल को पकड़ पाएंगे। तो ये कहती है श्रीमद् भगवत गीता। और ध्यान और मन की एकाग्रता, थोड़ा सा रोज हम मेडिटेट करें, थोड़ा सा हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, और माइंडफुलनेस, कंसंट्रेट करें उस चीज पर। ये हमारी इंप्रूव करेगा रिसर्च को। और 6th चैप्टर इन श्रीमद् भगवत गीता टीचेस हाउ टू डू ध्यान, है ना। मन की एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही तो इधर उधर ले जाता है हमको। मन टाइम वेस्ट करवा देता है, व्हाट्सएप पे लग जाते हैं हम लोग घंटों घंटों, बहुत सारा टाइम किल कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं टाइम ही नहीं मिल रहा रिसर्च के लिए, टाइम ही नहीं मिल रहा पढ़ाई के लिए। तो अल्टीमेटली हमको, अगर हम टाइम तो 24 घंटे ही है सभी के पास, उन्हीं 24 घंटे में बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसका टाइम भी वेस्ट करते हैं। 24 के 30 तो होंगे नहीं हमारे पास, 24 ही रहेंगे। तो उन्हीं को कैसे यूटिलाइज किया जाए, वो कैसे होगा, जब हम कंसंट्रेशन सीखेंगे, जब हम माइंडफुलनेस सीखेंगे, तो हमारी रिसर्च भी इंप्रूव होगी। तो ध्यान हमको श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं ध्यान के। तो थोड़ी देर 15-20 मिनट ध्यान करना चाहिए, उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है और हम अच्छे रिसर्चर बन पाते हैं। एंड देन फाइनली आत्म विकास और शोध, रिसर्च एज अ पाथ ऑफ पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जो हमारा खुद का भी इसमें प्रोग्रेस होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक ग्रेजुएशन लेवल में थी, जो वही मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में वैसी ही हूँ, वही फालतू मजाक, वही फालतू हंसी, वही इनसिंसियरिटी मेरी पर्सनालिटी में है अगर, तो क्या फायदा है मेरा पीजी करने का, या क्या फायदा है फॉर दैट मैटर मेरा पीएचडी करने का, अगर मेरी पर्सनालिटी में सिंसियरिटी ही नहीं आ रही। तो वो सिंसियरिटी आनी बहुत जरूरी है, आत्म विकास होना जरूरी है। रिसर्च एज अ पाथ ऑफ पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो और पर्सनल ग्रोथ भी हो, जब हम एक रिसर्चर बन रहे हैं। पीएचडी स्टूडेंट हो, एक ग्रेजुएट हो, एक पोस्ट ग्रेजुएट हो, अंतर होना चाहिए सब में। इसीलिए तो हम इसको बहुत, डॉक्टरेट कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। जब वो मिल रही है, इसका मतलब वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे पास आती है। देन वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। And see, these both Albert Einstein and this Henry David, right? ये दोनों ही क्या कह रहे हैं? Sometimes we pursue education, we may become more inclined towards the atheism. हमको
कई बार हमको लगता है हम बहुत एजुकेटेड हैं, अब हम तो धर्म को, हम भगवान को मानते ही नहीं है. हाँ, तो हम कई बार हम एथिस्ट हो जाते हैं, भगवान को मानना ही बंद कर देते हैं. वो सुपर जो एक सुपर नेचुरल पावर है उसको हम मानना ही बंद कर देते हैं. लेकिन ये किसका ट्रेट है? जो आधा एजुकेटेड है, पार्शियली एजुकेटेड है ना, उसका ट्रेट है ये. इस तरह एथिस्ट बन जाना उसका ट्रेट है. अधजल गगरी भल छलकत जाए वाली बात है ना. वो ही अगर कम एजुकेटेड है तो फिर वो क्या हो जाएगा कि एक सुप्रीम पावर पर बिलीव ही नहीं करेगा. वो सुप्रीम पावर कुछ भी हो सकती है, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, और श्री कृष्ण, श्री राम, कोई भी जो आप मानते हैं, जो आपका बिलीफ है, राइट. बट रिसर्चर्स ऑन द अदर हैंड आर अज्यूम टू बी हाईली एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, है ना. रिसर्चर को हम सोचते हैं बहुत हाईली एजुकेटेड है, हायर एजुकेशन के भी बाद रिसर्च होती है, तो हाईली एजुकेटेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है. अगर वो एथिस्ट हो जाए तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी. और ये दोनों बड़े एग्जाम्पल हैं उसके. ये इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन. उन्होंने क्या कहा? व्हेन आई रीड भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लूरियस. क्यों? उनको ऐसे लगने लग गया कि भाई ये तो क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़े तो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें हमेशा सही शिक्षा देते हैं और वो हमें पढ़ने ही चाहिए. और हेनरी डेविड भी ऐसे ही बोलते हैं, वो बहुत बिलीव करते थे. हालांकि ये सनातन धर्म नहीं मानते थे अल्बर्ट आइंस्टीन, बट देन आल्सो ही हैड अ स्ट्रांग बिलीफ ऑन श्रीमद् भगवद गीता. हेनरी डेविड ने भी यही कहा, इन द मॉर्निंग आई बेद एंड माई इंटेलेक्ट इन द सुपरजियस. एंड वो क्या कहते हैं ये कि भगवद गीता इज इन कंपैरिजन with our modern world and its literal seem puny and trivial. बाकी जो भी दुनिया है, लिटरेचर है, वो सब बहुत छोटे दिखाई देते हैं. श्रीमद् भगवद गीता इतना बड़ा लिटरेचर है. ये अमेरिकी निबंधकार हैं हेनरी डेविड, और कवि हैं और व्यवहारिक दार्शनिक हैं, बहुत फेमस हैं. आप 18th सेंचुरी में हुए थे ये. सविनय अवज्ञा इन्होंने लिखा है अपना एक आर्टिकल, उसमें तो ये भी मानते थे. और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? My wants are nothing compared to the demands of Arjuna on the battlefield of Kurukshetra, commanding a huge army, and yet he could not find time in the midst of the din and the turmoil of the battle to talk the highest philosophy and to carry it into his real life also. Surely we ought to be able to do as much as in this life of ours, comparatively free, easy and comfortable. तो जो अर्जुन का डिलेमा था, जो अर्जुन के प्रॉब्लम्स थे, वो इतने बड़े थे कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. हमारे जीवन में तो है ही नहीं वो वैसे प्रॉब्लम्स. पूरे सभी लोग, सारे जितने जिन गुरुओं ने हमको पढ़ाया, जो हमारे साथ में भाई हमारे खेले कूदे बड़े हुए हमारे साथ में, वो सब सामने खड़े हैं और उन सबको मारना है या खुद मर जाना है. ऐसी सिचुएशन तो हमारी लाइफ में है ही नहीं. भाई किसी रिसर्चर के या किसी के भी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. तो जब वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब वो उस टाइम पर वो हाईली फिलोसॉफिकल बात कर सकते हैं और वो कैरी कर सकते हैं उस चीज को अपनी लाइफ में, जो उनको बताया गया वो टीचिंग्स को, तो हम भी कर सकते हैं. फिर हमारी लाइफ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते. व्हेन ही कैन डू इट, वी आल्सो कैन डू इट. तो की टेक अवेज क्या है इसके, इस पूरे टॉक के? वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन. Integrating spiritual intelligence leads to more ethical, balanced, and impactful research. And Gita offers timeless guidance for modern challenges. And spiritual intelligence is not separate from science. हम ये नहीं सोचें कि साइंस अलग है और spiritual intelligence अलग है. दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही हैं. It's a catalyst for responsible innovation. है ना, ये spiritual intelligence is a catalyst for responsible innovation. And इन कंक्लूजन, हम बहुत जगह पर ये पढ़ते हैं, योग कर्मसु कौशलम. अगर किसी ने सुना है ये श्रीमद् भगवद गीता का, तो आप इसका मुझे आंसर दे सकते हो, इसका क्या मतलब है हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी. योग कर्मसु कौशलम. अपने अपने कर्म को कौशल से करना, अच्छे से करना ही योग है. क्या ऐसा और अर्थ है? हाँ बताएं. जितना मैं समझ पा रहा हूँ. हाँ, ये लिटरल मीनिंग यही लगता है इसका एक बार देखने में, है ना, कि हम अपने कर्मों को कुशलता से करना ही योग है. और आधी दुनिया यही कहती है
कि गीता में लिखा है कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म को अच्छे से करो, यही यही योग है। बट ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता बिल्कुल इसका उल्टा कहती है ना। क्या कहती है? ये जो हम देख रहे हैं ना, एक्सीलेंस इन एक्शन इन योगा, और आप बड़ी बड़ी जगह पढ़ लेंगे इसको, बड़ी से बड़ी जगह पढ़ लेंगे, यही लिखा हुआ होगा इसको, यही यही लिखा होगा इसका मीनिंग, एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा। कि हम एक्सेल हो जाए एक्शंस में तो वो योग हो जाएगा। नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेलेंस है एक्शंस में और वही योग है, योग का मतलब क्या है? कि हम सुप्रीम, जो हमारा सुप्रीम अल्टीमेट गोल है, उससे हम मिल गए। योग का अर्थ ये है। योग का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जोड़ना। और यहाँ पर योग का अर्थ क्या है? कि हम सुप्रीम, जो हमारी अल्टीमेट गोल है हमारा, हमने वो अचीव कर लिया। तो एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा अगर ऐसा होता तो चोर डाकू जो बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं, आतंकवादी जो बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं अपने एक्शंस में, तो वो तो योग उनको तो योग हो जाता, उनका तो अल्टीमेट गोल मिल जाता उनको। बट ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये इसका मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है एक्सेलेंस इन योगा इज कर्मा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको समता में रहकर करें। समता में रहने का मतलब क्या है? कि उसके उसके जो भी हम अचीव कर रहे हैं उससे हम सुखी दुखी ना हो। अपना एक्शन फुल पोटेंशियल के साथ करें, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। बट उसके बाद हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उससे हम डिस्टर्ब ना हो, समता में स्थित होकर योग। क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि समता ही योग है, समत्वम योग उच्चते। समत्वम योग उच्चते का मतलब क्या है? कि हम बैलेंस रहें। जैसे पहले के लोगों को हम देखते थे, तो बड़े से बड़ा उनके जीवन में घटना घट जाए, दुखी, बहुत दुखी हो जाए, तो भी वो खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। और और अगर बहुत खुशी आ जाए उनके जीवन में, तब भी वो रहते थे। श्री राम को हम देख लें, एक दिन पहले उनको जो है वो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और वो नॉर्मल है, कोई उनको बहुत खुशी नहीं हो रही, उछल नहीं रहे वो उसके लिए। और अगले दिन उनको वनवास भेज दिया गया, तब भी वो बड़े प्रसन्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको उससे। और हमारे जो ये लाहिड़ी है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने क्या किया? वो एक रात पहले दंड पेल रहे हैं, और अगले दिन उनको फांसी होने वाली है। तो जेलर ने उनको कहा कि भाई तुम अब क्या अपनी बॉडी बना रहे हो, तुम क्या दंड पेल रहे हो, तुमको अब तो तुम्हारे अगले दिन तो तुम्हें फांसी होने वाली है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा जो अल्टीमेट गोल है ना, मुझे अभी अचीव नहीं हुआ है, भारत अभी आजाद नहीं हुआ, तो मैं फिर जन्म लूंगा। ये बॉडी मर सकती है, आत्मा नहीं मरती है। तो मैं फिर जन्म लूंगा और फिर इस देश को आजाद कराने के लिए नई बॉडी के साथ आऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हम समता में स्थित रहकर अगर कोई कर्म करे ना, तो वो योग है, ये कह रहे हैं। और योग में रहकर का मतलब समता में रहकर, समता का मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं ना, वो। सो लेट योर रिसर्च बी द पाथ ऑफ एक्सेलेंस, नॉट जस्ट रिसल्ट, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। तो ये मेरा आप सबसे है। और विद दिस, थैंक यू ऑल for your patient listening. And if you have any questions, then you are most welcome. मैं मैम आपका आभार कैसे व्यक्त करूं, मतलब मैं खुद मुग्ध हूं। अभी शब्द कम है, पर मैं चाहूंगा पहले क्वेश्चंस आ जाएं। हाँ बिल्कुल। कोई हैंड रेज करें, कोई अगर आपको चैट पे डालना है। आई मीन आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स एंड अटेंडीज, प्लीज पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट। और क्वेश्चंस क्यों, आई मीन we can discuss, we can, I mean, you can put your takeaways, you can, yes, you can put your appreciation or feedback for the session. You can use reactions, you can use your chat. But अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका का समाधान करना का हो, तो would be beneficial for not just for you, for all others even. तो कोई अगर ऐसा प्रश्न है, अच्छा, please allow mic is there for all of you, you just need to unmute. Are you not able to unmute? Okay, let me check. Okay, okay. तभी मैं सोचूं कि आप कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है. Let me see, है ना? Allow mic for it. It is there. It is already there. प्रयास करें एक बार. I mean, as per settings, microphone is allowed. या आप प्रयास करें एक बार अनलॉक अनम्यूट करने का.
आप रेज हैंड करें, आपको अनम्यूट कर देंगे, अदरवाइज आप रेज हाँ हैंड करें, वैसे, वर्चुअल यस राइट, वैसा वर्चुअल भी रेज हैंड ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना। मधुप्रिया पूछती है किसी भी सिचुएशन में खुश कैसे रहें एज वी आर ऑल ह्यूमंस हैविंग डिफरेंट इमोशंस। वेरी गुड क्वेश्चन। किसी भी सिचुएशन में खुश रहने से मतलब ये नहीं है कि हाँ, अगर हमारे जीवन में बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई कि हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमको वो बहुत टेम्पररी है, हर चीज टेम्पररी है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके जीवन में सिर्फ दुखी 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 दुखी, कभी सुखाया ही नहीं है? ऐसा होता नहीं है ना। और बहुत सुखी सुखे सुखी सुखे बहुत रिलेटिव टर्म्स हैं, बिकॉज ये, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। इंक्रीमेंट मिल गया मुझे 1 लाख रुपए का साल में और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही मुझे पता चलता है कि मेरे पड़ोस में उसको 2 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिल गया है और वो मुझसे कम काम करता था, तो अब मैं खुश हूं क्या? लेकिन मेरे को रुपए तो उतने ही मिले 1 लाख जिससे मैं खुश हो रही थी पहले, और अब मैं खुश नहीं हूं क्योंकि दूसरे को 2 लाख रुपए मिल गए। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सिचुएशंस है ना हमारी, वो बड़ी रिलेटिव टर्म्स हैं। वही, एक दुकानदार है, एक 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 मार्केट है, उसमें 2 दुकानें हैं, दोनों कपड़े बेचते हैं। ग्राहक एक के पास जाएंगे, वो बड़ा खुश होगा क्योंकि उसके पास बिक्री हो गई, और वही ग्राहक वो बुला रहा था दूसरे वाला, लेकिन उसके पास नहीं गए तो उसका घाटा हो गया। तो बात तो एक ही हुई कि उस ग्राहक ने खरीदे कपड़े, उससे एक खुश हो गया, दूसरा खुश नहीं हुआ। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं, ये सुखी होना और दुखी होना, है ना। तो और ये हमारा, इससे हमारा बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर हम देखें ना डीप डाउन, तो ये बहुत टेम्पररी और बहुत फालतू चीजों के लिए हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। और आप जैसे, अभी मैं बहुत फिलोसॉफिकल लगेगा अगर मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बात करूंगी ना, ये हमारे ही कर्मों का फल होता है। जैसा भी हम करते हैं ना, वही हमको रिटर्न होके आता है। क्योंकि हम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं ना, आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, तो हमने पहले क्या किया है इस लाइफ में और प्रीवियस लाइफ्स में। बहुत बार कोई लोग होते हैं बहुत हमेशा ही दुखी रहते हैं, वो उनके लाइफ में सिचुएशंस ही ऐसी आती रहती हैं कि हमेशा दुखी 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 हैं वो। लेकिन वो उन्हीं के रिजल्ट्स हैं, उन्हीं के काम के रिजल्ट्स हैं। तो उनको खुशी खुशी सहन कर लेने से क्या होगा कि पुराने जितने भी हमने गलत किए हैं चीजें, वो कट जाती हैं उससे, है ना। और आपकी ये जो टेम्पररी चीजें हैं, और फोकस, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर रहेगा ना, तो हम चीजों से सुखी दुखी भी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मुंबई पहुंचना है और वहां पर मुझे बस मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और मुझे फ्लाइट के टिकट्स नहीं मिले, ट्रेन में भी मुझे एसी नहीं मिला, लेकिन वो उस मीटिंग में मेरा बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है, बहुत ज्यादा करोड़ों का मुझे फायदा होने वाला है। तो मैंने क्या किया, स्लीपर कोच में ही अपना रिजर्वेशन करवाया और मैं वहां जाके मुंबई जा रही हूँ। तो वहां पर रास्ते में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना, गर्मी लगेगी, बहुत सारी और सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, मुझे मुंबई पहुंच के वो मीटिंग अटेंड करनी है। तो मेरा फोकस इतना क्लियर होना चाहिए कि ये जो रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, वो इट विल नॉट डिस्टर्ब मी, right? So you make your objective so clear that things which are coming in between your path of achieving that particular objective won't disturb you. So this is what is my answer to your question, Madhu. एक प्रश्न और है, मुझे ऐसा लगता है हमें एक सेशन और रखना चाहिए। आई मीन प्रश्न इतने अच्छे हैं, इन पे 15-20 मिनट बोला जा सकता है। एक प्रश्न है, हाउ टू कंट्रोल द एंगर एंड एंड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट इफ दैट नॉट प्रॉपर। मैं वेरी समझ नहीं पाया। नाइस, बहुत आई अच्छा थिंक, क्वेश्चन है। हाँ, इसको देखो, मैं आपको है ना इससे एक एक छोटी सी ओके, स्टोरी सुना सकती हूँ, इफ यू परमिट डॉक्टर अमित। प्लीज प्लीज। एक बार श्री कृष्ण, सात्विकी और बलराम, ये तीनों जंगल में जा रहे होते हैं, मतलब अपना गाय गाय चरा रहे होते हैं। ये तीनों फ्रेंड्स हैं, कृष्ण है और बलराम है, ये तो फ्रेंड्स हैं ही, और एक सात्विकी और इनके फ्रेंड है ना। तो ये तीनों जंगल में जाते हैं और रात में रास्ता भटक जाते हैं और शाम होने लग जाती है। तो अब ये डिसाइड करते हैं कि रात में यहीं सोएंगे हम। तो वो सो जाते हैं वहां पर, और फिर कहते हैं कि रात को घना जंगल है, कोई जानवर आ सकता है, तो रात में कोई ना कोई एक जना खड़ा होकर पहरा देगा और बाकी दो सो जाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो सात्विकी ने कहा, पहरा देता हूं मैं और तुम दोनों सो जाओ। तो जब वो सोता है तो एक राक्षस आता है। पहले तो छोटा होता है वो राक्षस, और वो कहता है, क्या कर रहा है तू, आके मुझसे दो दो हाथ कर ले। तो सात्विकी कहता है, तुझसे दो दो हाथ करूंगा, और उससे मतलब आर्ग्यूमेंट में पड़ जाता है। तो जब वो आर्ग्यूमेंट में पड़ता है तो वो राक्षस बड़ा होने लग जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है।
वो उसके ऊपर फिर हंसता है कि क्या हंस रहा है, इधर आ और लड़ मुझसे। तो वो लड़ने लग जाता है उससे, और वो लड़ता है तो उसके हाथ पैर वो बिल्कुल तोड़ के रख देता है, मतलब सात्विकी को लग रहा था मैं इसको हरा दूंगा, लेकिन वो हरा नहीं पाता उसको, और चुपचाप आके वो सो जाता है कि मेरी इंसल्ट भी ना हो मेरे दोस्तों के सामने। तो चुपचाप सो जाता है और बलराम को कहता है अब तेरा नंबर है, उठ जा और तुझे अब पहरा देना है और मैं सो रहा हूँ। तो वो सो जाता है वापस, और वो अब बलराम को तो सब जानते हैं बलराम कितना शक्तिशाली है। तो बलराम के सामने भी वही आता है, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? तो वो बोलता है कि मैं पहरा दे रहा हूँ। तो बोलता है कि आजा मुझसे दो दो हाथ कर ले। तो बलराम उस पर हंसता है, वो उस पे हंसने लग जाता है। तो फिर दोनों की वो गुस्सा करते हैं दोनों आपस में, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है राक्षस, और वो फिर उसको बलराम की भी हड्डी पसली एक कर देता है, और बलराम भी चुपचाप आके सो जाता है। फिर वो कृष्ण को बोलता है कि कृष्ण उठो और तुम हम उनसे मतलब तुम पहरा दो, हम सोएंगे। तो जैसे ही वो राक्षस कृष्ण के सामने आता है तो कृष्ण को बोलता है कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर, चल मुझसे दो दो हाथ कर। तो कृष्ण बोलते हैं तुम कितनी मीठी बातें करते हो। तो वो कहता है कि क्या मजाक कर रहा है, तू मुझसे लड़ रहा क्यों नहीं है, लड़ मुझसे आके। तो फिर वो कृष्ण हंसने लग जाते हैं खिलखिला के कि यार तुम तो बड़े अच्छे दिखते हो और बातें भी इतनी बढ़िया करते हो। तो वो राक्षस जो होता है वो इतना छोटा हो जाता है, बड़े से छोटा होता चला जाता है, और वो इतना छोटा हो जाता है कि कृष्ण उसको अपनी पीताम्बरी में बांधते हैं और सो जाते हैं आके। फिर सुबह हो जाती है, तीनों उठते हैं, अब वो अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। तो उन दोनों को की तो शक्लें दिख रही होती हैं कि पिटे हैं रात में, और कृष्ण जो होते हैं उनके पल्ले में कुछ बंधा हुआ होता है। तो वो उससे पूछते हैं दोनों कि ये कृष्णा तेरे जो पीताम्बरी है इसमें क्या बंधा हुआ है। तो उसने बोला कि वो ही है ये जिसने तुम्हारी ये हालत कर दी दोनों की। तो कहते हैं कैसे, वो वो कौन था? तो कहता है वो क्रोध था। क्रोध को जितना हम भड़काएंगे ना, उतना ही वो बड़ा होता चला जाएगा। सामने वाला क्रोध कर रहा है, हम भी क्रोध करने लग जाते हैं, फिर वो क्रोध कर रहा है, फिर हम भी क्रोध करने लग जाते हैं। फिर ऐसे करके करके अल्टीमेटली हमारा भी नुकसान हो जाता है उससे, और सामने वाले का भी नुकसान हो जाता है। लेकिन यदि क्रोध को हम उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जाने दें, जस्ट हैव पेशेंस फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड जस्ट उसको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा स्टडी करें, तो हम उस सिचुएशन को जीत सकते हैं। और अदरवाइज हम उसके विक्टिम बन जाते हैं और हम भुगतते रहते हैं उसको। वी रिपेंट ओनली, वी कैन नॉट डू सो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, कि हम उसको अब सुधार नहीं सकते सिचुएशन जो हो गई उसकी। इस पर अमित सर भी आपको आंसर दे सकते हैं क्योंकि ही इज ऑल्सो। मैं तो सर मैम इतना प्रसन्न हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच मीन्स कि सुन भी रहे थे और इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ बट मैं अपने अनुभव साझा कर सकता हूँ। प्रश्नों पर आएंगे, पर उससे पहले हर्ष ने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं हर्ष? आप अनम्यूट करिए या चैट बॉक्स पे करिए। Yes. Somehow my question is not in chat, so I want to raise hand. Sir, am I Yes, audible? please, Harsh. Yes, you are Yes, audible, Harsh. Speak. yes. Sometime in what situation, there are many things like the motivation quotes or any speakers. At that time, we are good, but in when the time flies, in our mind, वही सिचुएशन है, हम पर जो नेगेटिव थॉट्स है वो हावी हो जाता है। और मोटिवेशनल अगर हम कुछ सुने तो कुछ टाइम के लिए तो वो चीज हो सकती है, लाइक दी भगवत गीता और ऐसे। बट वो चीज जो नेगेटिव हमारे अंदर है वो अ, कुछ टाइम के बाद इतना हावी हो जाती है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। ओके, तो मैं कैन आई टेक दिस क्वेश्चन जी, नाउ? Yes, please. Do you understand Hindi or English? What do you prefer? Hindi. He is speaking in Okay. Hindi. Okay. आपका प्रश्न, पहले मैं इसको अपने शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। आपका प्रश्न ये है कि मोटिवेशन इज टेम्पररी एंड नेगेटिव यस, थॉट्स कीप ऑन कमिंग आफ्टर द यस, इवेंट इज ओवर, है ना? ये आपका यस। मूल प्रश्न है। इसमें मैं दो तीन बातें बोलना चाहूंगा। तो पहला, वह सिचुएशन के टाइम पर हम उसको हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम के बाद वही जो थॉट्स है वो हमारे माइंड में आते रहते हैं। हाँ, तो देखिए, पहला बात, जो मूल, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ हाथ में दर्द है ना? कोई फोड़ा हो गया है या कुछ हो गया है,
आपको दर्द है, ये दर्द है, वो समस्या है, दर्द है मतलब इज इक्वल टू समस्या। आपने इसकी मरहम पट्टी करी, उसको समाधान किया, समाधान हो गया, ऑल इज वेल। पर अगर आपने ध्यान यहाँ वहां भटका दिया, आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, इस दर्द पे नहीं है। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द रूट कॉज, रूट कॉज पर जाइए। जब तक ये घाव नहीं भरेगा आपको तकलीफ होती रहेगी, चाहे आपका ध्यान थोड़े समय के लिए कहीं और चला जाए। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि आपको बाद में उसके बारे में नेगेटिव विचार आते हैं, इसका मतलब आपके मन से वो विचार गया ही नहीं, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, और आप जितना उसको रेजिस्ट करेंगे वो उतना परसिस्ट करेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस आनी पड़ेगी, राइट? आपने कुछ भी गलत किया, कुछ भी सही किया, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर होता है कि मृत्यु आएगी, मेरे स्वजन जो है, मेरे प्रेमी लोग हैं, वो मर जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो आपको क्यों डर है? क्योंकि आपने मृत्यु को एक्सेप्ट ही नहीं किया, है ना? जिस दिन आप कह लेंगे ये तो अंतिम सत्य है, मुझे भी जाना है, मेरे पिताजी को भी जाना है, मेरे बच्चे को भी जाना है, सबको जाना है, एक्सेप्ट तो करिए एक बार, डर खत्म हो जाएगा। जो अभी अभी मैम ने कहा, वो बड़ा राक्षस छोटा हो गया क्योंकि आपने सामना किया। तो जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ये सच है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, तब तक ये नेगेटिव चीजें आपको बार बार परेशान करती रहेंगी। तो मैंने 2 चीजें यहाँ कही हैं। पहला, You have रूट to कॉज को accept. का निवारण करो। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारा अंतर्मन स्वीकार नहीं करता, हम सिर्फ अपने आप को ऊपर से कहते हैं कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं फेल हो गया, हाँ मैं एक्सेप्ट कर लिया कि इसकी मृत्यु हो गई, पर आप अंदर से इसका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अंदर से एक्सेप्ट कर लोगे, ओके फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हो गया फेल, मृत्यु अंतिम सत्य है, होना ही है, उस दिन आपको ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। Absolutely, Yes. absolutely. और आप अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड भगवत गीता। आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, बिकॉज हमारे पास इतने सारे प्रश्न नहीं होते जितने आंसर्स हमको मिलते हैं हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में। और जो सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं जो जिस पर कि बहुत सारे लोग बिलीव कर रहे हैं, तो वो हमें, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस है, सबके होते हैं ये क्वेश्चंस कि हमें दुख होता है और हमें वो सिचुएशन बार बार याद आती है, हमें क्रोध बहुत आता है। तो ये सारे सिचुएशंस का एक ही और एक सबसे बड़ा है कि अब हमारी लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनाए हम। वो ऑब्जेक्टिव नहीं जो हमको अभी चाहिए, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत टेम्पररी होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी जॉब चाहिए, आज हमें अच्छे नंबर चाहिए थे 10th में, फिर 12th में एक अच्छे और नंबर चाहिए थे, फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, फिर अल्टीमेटली उसमें अच्छा स्कोर चाहिए था, फिर हमको नौकरी चाहिए थी, फिर एक अच्छी लड़की चाहिए थी। करके हमारी हमारी हमेशा हमारे ऑब्जेक्टिव चेंज होते जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव एक ही होता है लाइफ का। ये सारी सिचुएशंस जो है ना, ये सारी जो चीजें चाहिए हमको, ये टेम्पररी 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 है, बट परमानेंटली हम क्या चाहते हैं अल्टीमेटली लाइफ से, अगर वो ऑब्जेक्टिव हम बना लेंगे ना, तो उसके बाद में हमें ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, बार बार वो याद आ रहा है, बार बार ये चीज सिचुएशन आ रही है, बार बार गुस्सा आ रहा है, वो नहीं आएंगे। क्योंकि हमें सब टेम्पररी लगेगा फिर वो, कि ये सब तो है, पाथ में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, बट मेरा अल्टीमेट गोल वो है, वो मुझे अचीव करना है। सो दैट विल कीप यू, इट विल बी अ ड्राइविंग फोर्स फॉर योर दिस थिंग। मैम समय का अभाव है क्या? 3-4 क्वेश्चंस चैट में है, ले लें? हाँ हाँ, आप ले लीजिए, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। एक है, हाउ टू हैंडल एनी सिचुएशन विदाउट एंगर। तो इस पर मैं एक टिप्पणी करता हूँ मैम, फिर मैं आपसे कहूंगा। हाँ, मेरी टिप्पणी है कि व्हाई डू यू वांट टू हैंडल एवरी सिचुएशन विदाउट एंगर? एंगर इज नेसेसरी, समटाइम्स एंगर इज धर्मा, एंगर करना भी आवश्यक है, एंगर गुस्सा करना भी धर्म हो सकता है। तो इट इज नॉट, व्हाई डू यू टेक एंगर एज अ नेगेटिव इमोशन, है ना? पहला मेरा मेरा ये आउटलुक है। सेकंड, of course if you have anger you cannot handle the situation in a correct manner, right? ये तो बिल्कुल सही बात है कि एंगर होगा तो सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंगर आपको सिचुएशन को समझने ही नहीं देगा। तो एंगर पे मैं एक सेशन रख सकता हूँ, आधे घंटे का सेशन। लेट्स सी आज क्या हम करते हैं। बट मैम, देवर्षि मैम, मैं आपसे इस पर हाँ, टिप्पणी चाहूँ। एंगर देखो, एंगर अपने आप में कोई इमोशन नहीं है। एंगर
इज अ रेप्लिका ऑफ सम अदर इमोशन, कि हम कुछ चाहते हैं, कामना है उसके पीछे कुछ ना कुछ, कि हम ये चाहते हैं ये पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी नहीं है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ये पर्सन ऐसे एक्ट करना चाहिए, ये पर्सन ऐसा नहीं है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इतना रुपया मिलना चाहिए, मुझे इतना रुपया नहीं मिल रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है ना। तो ये अल्टीमेटली जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये गुस्सा अपने आप में कोई इमोशन नहीं है, गुस्से के पीछे कामना इमोशन है कि हम श्रीमद् क्या भगवत चाह रहे गीता हैं। में मैम सॉरी हाँ मैंने, है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, काम को संगात् क्रोध का कारण संजायते बताया गया कामम, है। कामात् क्रोधात् क्रोधाभिजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्योंकि क्रोध आ जाता है ना तो सम्मोहित हो जाते हैं, मोहित अवस्था में आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, तो हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन है, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और फिर हम नीचे गिर जाते हैं अपनी सिचुएशन से। हम बाद में पछताते हैं कि हाउ, मैंने कैसा एक्ट कर दिया, मैंने कैसा बिहेव कर दिया, ये लैंग्वेज तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं है लेकिन मैंने ऐसी लैंग्वेज भूल दी, इस इंसान से तो मैं इतना प्यार करता हूँ करती हूँ, और उसके बाद में मैंने उसको उसका दिल दुखा दिया गुस्से में। तो गुस्सा अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं देता, लेकिन गुस्सा एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, जो अभी सर ने कहा। गुस्सा एक ड्राइविंग फोर्स है कि अगर हमें कुछ अच्छा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं और मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं, तो वो ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। हमको गुस्सा दिखाना नहीं है, लेकिन गुस्सा अपने ड्राइविंग फोर्स की तरह यूज करना है और उस अल्टीमेट गोल को अचीव कर लेना है। सो दैट विल ड्राइव यू एज अ फोर्स टू अचीव योर गोल्स। बिल्कुल। सेशंस इस पे हो सकते हैं, मैं आप लोगों के प्रियंका प्रश्नों को समझ सोनी पा जी रहा हूँ। फ्रॉम सीडीओ इज आस्किंग समथिंग। हाँ, मैं एक एक करके बढ़ रहा हूँ आगे। कीर्तन कीर्तन चौकसी पूछ रहे हैं, मैम हम डिसिप्लिन में रखकर दुख फील करते हैं और बाकी इनडिसिप्लिन लोग खुश। या ये समाज की सिचुएशन है कि डिसिप्लिन वाला सोचता है कि मैं पीछे रह गया और इनडिसिप्लिन वाला खुश है, बट बट ये वास्तव में हाँ, इनडिसिप्लिन बहुत टेम्पररी फायदा तो दे सकता है, बट अल्टीमेटली वो नहीं देगा फायदा, है वो ना, आपको इसलिए हम परमानेंटली डिसिप्लिन एक है ना। गलत व्यक्तित्व बना देगा और वो आपको आगे कष्ट देगा। तो मैं इसको मैं छोटे में ही इसको कर रहा हूँ। दिव्या पूछ रही हैं, दिव्या मैम, हाउ कैन वन डील विद ओवरकम विद सेल्फिश बिहेवियर्स ऑफ अदर इन रेस्पेक्टफुल मैनर? दूसरों के स्वार्थी व्यवहार को हम शालीनता हाँ, से कैसे? आई वुड लाइक टू आंसर इट। देखो, स्वार्थी व्यवहार को अगर आपको पूरा करना है ना, तो स्वार्थ उनका पूरा होने दें, कोई परेशानी नहीं है उस स्वार्थ को पूरा होने में, क्योंकि वो स्वार्थ पूरा होने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जिसको जो चाहिए होता है उसको हमको वो दे देना चाहिए। अगर कोई रिस्पेक्ट बहुत मांग रहा है और उसको जी, रिस्पेक्ट का वो भूखा है कि मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी सब सम्मान करने चाहिए, तो क्या हमारे पास सम्मान नहीं है देने के लिए? दे दें हम उसको सम्मान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो बहुत है सम्मान देने के लिए, तो हम उसे सम्मान दे दें। धन दे सकते हो, कोई धन से सेटिस्फाई हो रहा है तो धन दे दें, लेकिन सेल्फिश बिहेवियर हमको हार्म कर रहा है तो हम बस हम उससे थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, बट उसका हार्म नहीं करें हम उसकी वजह से, है ना। वो सेल्फ हार्म खुद ही कर रहा है अपना, उसको अपने हाल पे छोड़ दे। बिल्कुल। वेरी नाइस मैम। मैं मतलब मैं कहूंगा कि नए नए आयाम मुझे समझ में आ रहे हैं आपके से। Next is Kashyap Anand. My question is how we can decide that what is the supreme goal of our life. Goal setting again एक different topic है. We can talk about 15-20 minutes on that. मुझे सर मैम ऐसा लगता है कि हमें ना इस 2 दिन ना रख के इसे 3 से 4 दिन रखना चाहिए था. There are several questions जिनका मुझे खुद लगता है कि आधा घंटा उन पर बोला जाना चाहिए. अच्छा, इस हैप्पीनेस का बहुत एक सुंदर सा एक क्वेश्चन पूछूंगी बस मैं इसके क्वेश्चन पर, कि क्या चाहिए हमें लाइफ से? अच्छा जॉब, क्या चाहिए हमें? ब्लिस चाहिए हमको अल्टीमेटली, है ना, सच्चित आनंद चाहिए हमको, है ना। एक तो हम इंक्विजिटिव हैं कि हमें जानना है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर भी हम पूछेंगे कि भाई इसकी लाइफ में क्या हो गया, और कुछ नहीं तो हम न्यूज़पेपर ही चेक कर लेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं सत्य, है ना, सत्य जानना चाहते हैं हम। और चित मतलब इंक्विजिटिव है हम, और आनंद इसका मतलब हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हम पैसा चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, हम मकान चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, हम अच्छा पार्टनर चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। तो हम सब कुछ चाहते हैं इसलिए, और अगर हम बीमार हो जाएं तो वो अच्छा पार्टनर, वो अच्छा मकान, वो कुछ भी नहीं हमको खुशी देगा। तो हम हेल्थ चाहते हैं क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हम खुश रहना चाहते हैं, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। और खुशी कैसे मिलेगी? वो सुप्रीम पावर से मिलने पर ही मिलेगी, है ना।
ये बहुत अलग बात है. सो यू शुड गो टू योर स्क्रिप्चर्स, वेदास पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए. ये सब पढ़ेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली हमको कहाँ पर ब्लिस मिल रही है. ब्लिस है ना, भाई खुशी तो मिल सकती है, कोई हम डीजे नाइट में जाएंगे वहां पे भी खुशी मिल सकती है, बट ब्लिस कहाँ मिल रही है, जो हमेशा रहने वाली है, जो जाने वाली नहीं है, कंटिन्यूड हैपेंस. कंटिन्यूड है और उत्तरोत्तर बढ़ने वाली है. यस सर. संजय जी, मैं आपका प्रश्न पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ. आई विल रिपीट. आई फील वेरी डल व्हेन आई सी वर्क to complete in time, also begin to think more other work. क्या ये आप ये बोलना चाह रहे हैं कि काम देखकर आपको डर लगता है या डल लगता है और आपको लगता है कि बहुत सारी और काम है? आई थिंक इट इज मोर टू डू विद टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. तो मैं देखता हूँ मैं कुछ सूत्र आपको बता पाऊंगा. देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट लाइक पोमोडोरो टेक्निक्स, टाइम बॉक्सिंग, बहुत सारे हैं, बट मैं अभी इस पर नहीं आ रहा. नेक्स्ट इज गीता मैम. आप माइक, हाँ बताइए मैम, आपको एक प्रश्न है. हाँ जी, नमस्कार सर. नमस्कार मैम. नमस्कार. मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो कभी कभी हम जो अपना कर्म कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट स्पिरिचुअली, बट वी आर नॉट हैविंग वी आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम फॉर स्पिरिचुअलनेस एंड तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अपना काम भी एक पूजा की तरह कर रहे हैं तो क्या इतना काफी है, या हमें कुछ भगवान के नाम के लिए भी समय निकालना चाहिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका. ये बहुत ही ज्यादा हम लोग के श्रीमद् भगवत गीता में आता है क्वेश्चन. जनरली कॉलेज के टॉक्स में नहीं आता. बट देखिए, कर्म योग जो है ना, श्रीमद् भगवत गीता के पहले सबको ये लगता था कि सन्यास ले लेंगे, हम पहाड़ पे चले जाएंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे और तभी हम उस अल्टीमेट गोल को पा सकते हैं. लेकिन कैसे हम ऑफिस का काम करते हुए, कॉलेज में पढ़ाते हुए, बच्चों को संभालते हुए, घर का खाना बनाते हुए कैसे वो अल्टीमेट गोल को पालेंगे, या हम कैसे इसको भी हम पूजा कह सकते हैं. तो यही श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कोई भी काम अगर हम सेल्फलेस होके कर रहे हैं, दो चीजों के लिए, पहला दूसरों की सेवा के लिए और दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी अल्टीमेट को जिसको भी आप मानते हैं उसकी प्रसन्नता के लिए, ये दो पर्पस अगर हम याद रखेंगे ना तो हम कोई भी काम करें वो पूजा की श्रेणी में ही आता है. जरूरी नहीं अगरबत्ती लगाएं हम, जरूरी नहीं है दिया लगाएं हम, लेकिन हम जो भी करें ना किसी और का दिल नहीं दुखाने के लिए करें और उस सुप्रीम पावर को याद में रखते हुए करें. स्मरण ही है जो भी हम करते हैं ना, नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके पीछे का जो साइंस है ना वो स्मरण है, कि हमारे स्मरण में भगवान रहे. तो अगर स्मरण में भगवान किसी भी एक्ट के द्वारा रह रहे हैं ना तो वो अल्टीमेटली पूजा ही है. अगर हम काम करते वक्त भी ये लिख रहे हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम कर रहे हैं और इसमें कोई भी गलत नहीं है, किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं कर रहे हम, तो वो अल्टीमेटली भगवान की सेवा ही है. क्योंकि भगवान के जनों की सेवा है ना. भगवान सिर्फ वो नहीं है जो विग्रह में दिखाई देते हैं, भगवान सारे हैं जो कि हमें ह्यूमन बीइंग में दिखाई देते हैं. तो उन सब मतलब के जो लिए भी भी हम अगर कर हम रहे हैं वो सेवा भावना से और अपना 100% सेल्फलेस देते हुए होके करें. और हाँ. सेल्फलेस होके. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सिंधु पूछती हैं, हेल्पिंग अदर्स समटाइम्स बैकफायर, हाउ टू हैंडल दैट? सहायता करना, जैसे देखो दान की भी महिमा है. हम कहते हैं ना कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए. तो जो आप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सोच समझ के करें. बाकी हेल्प तो आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाता ही है, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन आप किससे हेल्प कर रहे हैं, क्यों हेल्प कर रहे हैं? अब मान लीजिए कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हेल्प किया ना दुर्योधन, तो कर्ण क्या धर्म के श्रेणी में आ गया, धार्मिक श्रेणी में आ गया? नहीं. तो हेल्प किसका कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर विवेक का अंकुश होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. मैम आप बताएं. हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने. हेल्प करने से देखो, हम हेल्प कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए नहीं करें दूसरों का कुछ भला कर देंगे. जो जो ये थे रहीम दास जी का एक दोहा सुना होगा आपने कि क्या था वो, लोग भरम मुझ पे करे ताते नीचे नैन, कि वो जब भी किसी को डोनेट करते थे, दान देते थे ना कुछ, तो आंखें नीचे कर लेते थे अपनी, सर झुका लेते थे अपना. तो सबने पूछा कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों आप ऐसा करते हैं गुरुजी, आप तो दे रहे हैं किसी को, फिर आप तो सर उठा के दीजिए, सर झुका के क्यों देते हैं आप?
तो बोलते हैं कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, कि वो देता है मुझे, दिन और रात देता रहता है मुझे, और मुझ पे लोग भ्रम कर रहे हैं, इसलिए मैं सर झुका लेता हूँ। लोगों को लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ उनको। तो अब जब हम हेल्प कर रहे हैं ना, तो हमें ऑलमाइटी ने इसका निमित्त बनाया है कि आपके थ्रू मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो ये अगर भाव रख के हम किसी को हेल्प करेंगे ना, तो हमें लगेगा ही नहीं कि इन रिटर्न वो हमें कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमको कभी किसी को डोनेशन या दान भी देना चाहिए ना, तो यही सोच के देना चाहिए कि उसी का है और उसको दे रहा हूं मैं। अगर हम देंगे कि हमने, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा अगर हम ऐसे देंगे तो। लवली। मैम, प्रश्नों का अंत तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि सर आप मेरा एक नंबर है ना यहाँ पर दे दीजिए, अगर श्रीमद् भगवत गीता कोई ज्वाइन करना चाहता है ना, तो इन सब ग्रुप में से, तो वो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कि मैं हाउ डाल कैन देती हूँ अपना वी नंबर। स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता, ऐसा प्रश्न हाँ है। हाँ, तो मैं I'm आपका giving my number. I am associated with one of the group which is selflessly teaching Bhagavad Gita, और as a course, certification course है वो पूरा, जिसको हम करवाते हैं, और 9 months में होता है वो। तो वो मैं आपको बताऊंगी, और बहुत अच्छा बच्चे भी कर रहे हैं उसको। और अभी हमारा समर स्कूल होने वाला है, 4 दिन का है वो समर कैंप, और वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का होगा मॉर्निंग में, 4 days चलेगा वो। तो उसमें जो students हैं, they are most welcome to participate. So I am giving my number over here in the chat box. You can note it down and you can contact me for registering into that. क्योंकि हमारे सारे प्रश्नों का समाधान मिल जाता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो। मेरा नंबर मिल गया है आप लोगों को चैट बॉक्स में? नहीं, नंबर तो नहीं दिख रहा है मैम। तो मैं मीटिंग चैट में लिख रही हूँ, मगर आप डाल आप दीजिएगा। बताइए, मैं डाल देता हूँ, बताइए। हाँ, 98293 हम्म 21553। 98293 21553। क्योंकि इट इज वेरी साइंटिफिक, और बहुत सारा यूथ अभी तो श्रीमद् भगवद गीता से अट्रैक्टेड है, और बड़े बड़े लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोहन पूछ रहे हैं, इज इट चार्जेबल, रजिस्ट्रेशन चार्जेबल है क्या? रिफंडेबल है। 500 रुपीज आपको देने होते हैं स्टार्टिंग में, और वो रिफंड हो जाते हैं आपके कोर्स कंप्लीशन पर। 500 रुपीज फॉर 9 months, उसमें हम आपको 250 रुपए की तो किताब दे देते हैं, और वो Okay. उसमें वो उसका कुछ नहीं, रिटर्न उसका कोई पैसा नहीं देना होता। 500 रुपए आपको जैसे ही आपका कंप्लीट होता है सेशन, तो आप उसको वापस ले सकते हैं। बस वो एक कमिटमेंट फीस है, क्योंकि हम फ्री कुछ भी करते हैं तो वो हम उसके लिए सिंसियर नहीं होते। हम कहीं भी बहुत सारी जगह पे रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन हम जाते ही नहीं है उस जगह पर, क्योंकि हमने उसमें उसके लिए कुछ पैसा ही नहीं दिया होता है, या फिर हमारी कोई कमिटमेंट फीस नहीं होती है। इसलिए हमने एक कमिटमेंट फीस रख रखी है, सो दैट पीपल विल टेक इट सीरियसली, दे विल कम। अल्टीमेट गोल ये है कि पढ़े सब इसको, ये इसलिए इसके लिए नॉमिनल सी फीस रखी गई है, और ये आपको वापस दे दी जाती है। Okay, ma'am, I think we will now have to call it a day. I mean, I know बहुत प्रश्न है, बहुत कुछ है, बट मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बहुत लाभदायक रहा। हमने जिस उद्देश्य से सेशन रखा है वो पहुंच पा रहा है ना और पार्टिसिपेंट्स इन लोगों को ये भी बोलिए कि पोस्ट लंच जो सेशन है ना, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। अक्षय पात्र फाउंडेशन से हमारे जो ये है राघव चरण प्रभु, वो आने वाले हैं। जी सो ही इज अ वेरी गुड स्पीकर, और हमारे यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी में तो वो आते भी हैं, और हमारा क्लब चल रहा है उसका, MUJ ओरिजिन्स क्लब, जो कि MIT जो मिश्र यूनिवर्सिटी है वहां पर भी है वो क्लब। तो वैसा ही क्लब हमारे यहाँ चल रहा है। वी वांट टू प्रमोट दैट क्लब आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली हमको ये ना जो है वो एक सेटिस्फैक्शन देता है। और इस क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसमें DJ नाइट भी होती है, तो आप लोग इसमें आ सकते हैं, इसमें आप आइएगा। 2 बजे जो एक सेशन होने वाला है, उसमें भी आप सब अटेंड करिए। ठीक है। सर, So formally I would like to thank देवर्षि मैम now. I mean, इसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज प्रश्न ही सारा बता रहे हैं कि लोग कितना लाभान्वित हुए हैं। पर फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, देखिए पहला सेशन तो था जो डॉक्टर वैभव का था, इट वाज अबाउट नॉलेज एंड स्किल्स एंड हाउ these skills will make life easier for researchers.
उनका स्ट्रेस कम करेगा। दूसरा सेशन जो था हमारे पांडे सर का, वो इट वाज ऑन टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, हाउ टू रिलीव स्ट्रेस एंड। और आज का सेशन में अगर एक शब्द में कहूँ, इट वाज अबाउट इनर पीस। हमारे अंदर शांति का अनुभव कैसे होगा, पीस कैसे आएगी, इनर ट्रैंक्विलिटी कैसे आएगी, उस पर था। मैं अगर ऐसे करूं, वरना आपने शुरुआत आई थिंक डिलेमा से करी ऑफ रिसर्चर्स हु इज परसिंग पीएचडी, है ना, जो अर्जुन के डिलेमा के जैसा ही था। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, फिर आपने कॉन्शियसनेस के बारे में, इनर विजडम, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ईक्यू को समझाया। फिर आपने अर्जुन का जो विषाद था, उसका जो डिलेमा था, वो कैसे हमारे पीएचडी स्कॉलर्स का भी डिलेमा है ना। तो आपने निष्काम कर्म के बारे में, शोधकर्ता की क्या दुविधा है, शोधकर्ता का क्या धर्म है, समत्व के बारे में आपने बताया। और बहुत हद तक हम कहेंगे कि जो पीएचडी की जर्नी है वो एक साधना है, तो आपने साधना का क्या रूप है, शोध के बारे में वो बताया। और मैं कहता हूँ ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स के लिए नहीं है, जो आज हमारे स्कॉलर्स हैं वो कल हमारे सुपरवाइजर्स बनेंगे, है ना। और इसमें बहुत सारे सुपरवाइजर्स, एकेडमिशियंस भी जुड़े हुए हैं, तो सबके लिए एक लाभदायक सेशन रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर देवर्षि पल्लवी भट्ट जी का, जिन्होंने इतना समय निकाला और हम सबको लाभान्वित किया। Thank you, ma'am, and thank you all the participants. Thank you, Dr. Amit. You are such a wonderful host of this event, and Dr. Chandrasekhar Patel for organizing this event, both of you. और सबसे अच्छे हमारे ऑडियंस जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि लोगों ने सुना। अदरवाइज मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, मैं अकेले ही बोले जा रही हूँ, मगर लास्ट में जब क्वेश्चंस आए तो लगा कि हाँ, सबने सुना है। No, so thank you, ma'am. Thank you once again from my side Thank as well. you, Dr. Chandrasekhar. It was wonderful to listening you and having a lots of insightfulness for our life as well. That how can we This shows that you both have planned this event. That means you are looking